our ICI is applicable for this year or not. So I request our Gopalji, who is the most suitable person who can view on this particular point, whether this is applicable or not, and what step we should take to do all these formalities. So Gopalji is not a new to our study circle or among the member, but still my duty to introduce him very briefly. Gopalji is a BCom, law graduate, DISA, IFRS, and senior partner at Gopal J. Agrawal and Company. Spiritually connected with ISKCON and yoga, and he has addressed more than 500 seminars, teleconference, webcast, webinar in last 12 years. Regular faculty of SBI, State Bank of India, member of FRRB, Research Committee of ICI, special invitee of Accounting Standard Board and EAC of ICI, technical reviewer, and he is also speaker on the topic, hot topic that you may say, revised auditor report, IFRS, and is accounting standard on auditing, excellence in financial reporting, auditors report, IFC and CARO, bank branch audit, revised rule 2nd and 3rd to the Companies Act 2013, accounting issues in real estate transaction. So this is the brief profile of our brother CA गोपाल जी अग्रवाल. भगवान ने ही जी लगा दिया इनके नाम में. तो वैसे भी हमारे पूज्य हैं, गोपाल जी हैं, और राधा रानी की आज प्रागोत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ. और this I also welcome Hemant Pava ji and all the attendee, and request if anybody want to join us as a panelist as requested by Gopal ji also, so please raise your hand. We will take him as a panelist. With this, sir, thank you, and over to you, sir. Thank you, Rajesh bhai. At the outset, I am really grateful to my brother, loving brother Rajesh bhai, who keeps on what you can say learning. और वो भी लर्निंग ऐसे टाइम में जब बिल्कुल लास्ट टाइम हम लोगों का चल रहा होता है, सितंबर. सर. So, but really, I salute you, sir, for your efforts in the profession. Well, you are doing wonderful job for the members. That too selfless. Sir. No agenda of election and all that now. Probably Not at all, sir. Not. Probably rest in your mind in future or near future also. And of course, Pavaji, very senior members of the profession, my dear friends. We are getting a lot of basically queries on audit trail and other aspects also. So just I want to request all my friends or the participant over here to join either as a panelist, or you can raise your queries also simultaneously, or you can put your questions in chat box also. क्योंकि अगर ये थोड़ा सा पावा जी इंटरेक्टिव बनाएंगे तभी इस सेशन में मजा आएगा. अदरवाइज ये सेशन 5 मिनट का भी हो सकता है और एंडलेस. ये इस तरह का टॉपिक है. तो भी भाई साहब जरा फोन पे हैं, थोड़ा सा इनकी परमिशन ले लेते हैं. तो पावा साहब से ही हम शुरू कर देते हैं. करिए सर, शुरू. इसको सर इस तरह से थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाएं, क्योंकि अदरवाइज ऑडिट ट्रेल की बात है तो सबको मालूम है कि गाइडेंस नोट आईसीआई का आया हुआ है, रिवाइज्ड गाइडेंस नोट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल 11G ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट. तो उसके अंदर किस तरह से रिपोर्टिंग कर रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो काफी लोगों की पावा साहब क्वेरी यही आती है कि इसमें क्या क्वालिफाई करना है. तो सबसे पहला क्वेश्चन यही कि अगर उसने इम्प्लीमेंट नहीं किया है कंपनी ने, तो वी शुड नॉट टेक द रिस्क. एंड बिफोर स्टार्टिंग माई बेसिकली दिस टॉपिक, एक मेरी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से है, हमेशा रहती है. हालांकि मेरा कोई पर्पज ये नहीं है कि एश्योरेंस जॉब को हम ये कहें कि डिस्करेज कर रहे हैं, बट एक रिक्वेस्ट जरूर है. निकालिए नाम. सभी प्रोफेशनल से जो ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट प्रोफेशन में, जो टैक्स की प्रैक्टिस में उनसे मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं. हमारे हिसाब से वो बिल्कुल फ्री है, बट जो एश्योरेंस जॉब में किसी तरह की एक सर्टिफिकेट भी अगर इशू करते हैं तो काइंडली विजिट द नफरा वेबसाइट, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. एक ऑर्डर डेली ड्रॉप होता है उसके बॉक्स में आके. और अभी कल एक नोटिस तो हमारे एक और राजेश भाई जानते हैं उनको, फिर से आ गया, और वो भी 1 साल बाद.
I had submitted the file before 1 year around, the complete file. Now we have again got the basically so-called notice. कोई पर्पज ये नहीं है कि किसी तरह से डिस्करेज करना, बट एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली रीड वन ऑर्डर इन टोटो। और राजेश भाई पहले तो 150-200 पेज के ऑर्डर आ रहे थे, अब तो बड़ा कृपा ये हो गई है कि 25-30 पेज में वो सॉल्व कर देते हैं अपने ऑर्डर को। पर पेनल्टी का अमाउंट तो बढ़ा दिया ना। नो डाउट, बट उसके अंदर मतलब यू सी द ब्यूटी ऑफ द ऑर्डर, मतलब आप खुद अप्रिशिएट करेंगे जिस तरह से उस ऑर्डर में डिस्कशन है पावा साहब, आई ओपनर है। एक एक पैराग्राफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लेके, वो कहाँ पर कहाँ ग्रॉस नेग्लिजेंस किस तरह से मेंबर्स से हो रही है, बेसिकली दे आर पॉइंटिंग आउट। और मुझे तो राजेश भाई ऐसा लगता है कि अगर इस बोर्ड ने 20 साल पहले काम करना शुरू कर दिया होता तो आज हम लोगों की कहाँ पोजीशन होती, वी कैन नॉट थिंक ऑफ। लेकिन चलो हम ये कहते हैं कि अब हमारी जो आने वाली जनरेशन है, अगर ये नफरा इसी तरह से इसी स्पीड से और इसी स्पिरिट से काम करता रहा, मैं बता रहा हूं आपको, लिस्टेड कंपनियों में ऑडिटर्स नहीं मिलेंगे आपको। हकीकत तो ये है। जी जी। राजेश भाई के पास आएगा तो कहेगा पावा साहब के पास चले जाओ, पावा साहब कहेंगे नहीं गोपाल जी ज्यादा बोलते हैं, उन्हीं के पास जाओ। मैं तो लिस्टेड कंपनी करता नहीं हूं। बिलीव मी, इट विल हैपन। क्योंकि वो जो चीजें आज तक केवल एकेडमिकली पढ़ी जा रही थी, वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना वो सिखा रहे हैं आपको। वन कैन से कि किस तरह से ऑडिट फाइल कंक्लूड होती है, किस तरह से वर्किंग रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आई डू अप्रिशिएट द काइंड ऑफ वर्किंग और द काइंड ऑफ डिलीवरी दे आर मेकिंग। कुछ लोग हमारे प्रोफेशन में, हम लोगों में है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता, बट मुझे पता नहीं इसलिए नहीं अच्छा लगता है वो मेंबर्स को पेनलाइज कर, इसलिए कि ग्रॉस जहां पर आप पढ़े उनकी फाइंडिंग्स। राणा शुगर का भी एक रिसेंट जजमेंट आया, उसमें आप पढ़े कि एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को डायरेक्टर बना के दूसरी कंपनी फ्लोट कर दी, बैंक के फंड उस कंपनियों में ट्रांसफर कर दिए जिससे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट ना करनी पड़े आपको। यू सी द ब्यूटी, रिलेटेड पार्टी आपको डिस्क्लोजर नहीं है। उसके बाद उन कंपनियों से डायरेक्टर्स ने पर्सनल अकाउंट में पैसे ले लिए। तो अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ऑडिटर्स शुड चेक ऑल दीज थिंग्स। सो विद दिस मेरी एक फिर से एक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली ये नफरा का ऑर्डर के लिए कोई बहुत मेहनत नहीं करनी, आप सीधा गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे नफरा, NAFRA, आप नफरा की वेबसाइट पे पहुंचेंगे और ऑर्डर्स का टैब है, ऑर्डर्स के टैब में कोई भी एक ऑर्डर, आई एम नॉट एडवोकेटिंग एनी पर्टिकुलर वन ऑर्डर की आपको लगे मैं किसी मेंबर के अगेंस्ट हूं, कोई भी एक ऑर्डर आप जरूर पढ़ें। दो जो बेसिकली कहते हैं ना, जैसे मंदिर का द्वार है वो, एक बार आप उसमें घुसेंगे तो आपको दर्शन होंगे कि क्या किस तरह से, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम द ऑडिटर्स। और ये ऑडिट ट्रेल उसी एक लिंब में आगे जाके आ रहा है कि अगर आज को हम ये लिख देते हैं कि ऑडिट ट्रेल इंप्लीमेंटेड है, तो सर बैक डेटिंग नहीं हो सकती इसकी, बिलीव में इसकी राजेश भाई बैक डेटिंग हो सकती, कभी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कई लोग सजेस्ट करते हैं कई तरह के उपाय, बट हमें कोई भी उपाय समझ में नहीं आए। वो कोई उपाय ऐसे नहीं है। उपाय उसका सबसे बढ़िया यही है कि अगर ऑडिट लॉग एडिट लॉग नहीं लगाए तो आपको लिखना है कि नहीं लगाए, अगर बीच मिडिल ऑफ द ईयर में लगाए तो लिखना है कि मिडिल ऑफ द ईयर में लगाए, एंड ऑफ द ईयर में लगाया है तो एंड ऑफ द ईयर में, या पर्टिकुलर किस सेगमेंट में लगा है किस सेगमेंट में नहीं लगा, इट हैज टू बी रिपोर्टेड। और इसके लिए अगर आप देखना चाहें इन नंबर ऑफ लिस्टेड बैलेंस शीट्स, इवन इफ यू टॉक अबाउट हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, अडानी कंपनीज, TCS, इन सभी कंपनियों में राजेश भाई इसके अंदर क्वालिफिकेशंस आई हैं एडिट लॉग के अंदर। ऐसा नहीं है कि बड़ी लिस्टेड कंपनियों में लाइन लगा के आई हुई है। और एक हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर है, उन्होंने एक कंपाइलेशन भी बहुत इसकी अच्छी की है, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, विशाल दोषी जी ने। ही हैज लिस्टेड सम कंपनीज इन वेयर द ऑडिटर्स हैव बेसिकली क्वालिफाइड इन दिस रिस्पेक्ट। और मुझे तो ऐसा लगता है कि खासतौर से जो स्मॉल कंपनीज की हम बात करते हैं, MSME की बात करते हैं, उन कंपनियों में 80-90% कंपनीज में इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द ईयर। किसी ने लगाया, किसी ने नहीं लगाया, किसी ने फैग एंड पे लगा दिया। तो अगर ये ऑडिट ट्रेल एप्लीकेबल तो सभी कंपनियों पे, स्मॉल कंपनी पे भी है, कुछ फॉरेन कंपनियों पे भी है जो इंडिया में है, तो कोई एग्जम्पशन किसी तरह की कंपनी को इसमें नहीं है। अब एक क्वेश्चन अभी गौरव गर्ग जी ने पूछा था चैट बॉक्स में, इसमें क्वेश्चन आंसर वाले में पड़ा हुआ है, वहीं से मैं शुरू करता हूं, क्योंकि अगर लोग वैसे नहीं जुड़ रहे तो यहां से जोड़ लेते हैं। इन्होंने कहा है कि सर स्मॉल नॉन वर्किंग कंपनी ऑफ द कंपनी हैज मेड एंट्री इन टैली
in added version in June, July 2024. There were only few entries. What shall be the comment in this case? So Gaurav ji, with all my due respect to everybody, we have to report कि that it was no, अगर आप कहते हो कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा कि थ्रू आउट द ईयर इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड। और पावा जी, मैं तो इसमें ये भी एक वे आउट है और लॉजिकल वे आउट है, जो कंपनी डोरमेंट कंपनीज हैं या जिसमें 5-7 ट्रांजेक्शन है, it is not required to be maintain those basically books of accounts in software. We can maintain it manually also. Probably I am able to convey the message, क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है तो हम अनऑफिशियली और ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। मैंने इशारा ये किया कि वो मैनुअली भी मेंटेन हो सकती हैं। 10, 20, 25 अगर एंट्री है तो वो मैनुअली भी मेंटेन हो सकती है। एंड ऑडिट ट्रेल तभी लगेगा जब आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। सो वी हैव द ऑप्शन आइदर टू डू मेंटेन द अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनुअली और थ्रू सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर के पार्टली भी कर सकते हैं कि पार्टली मैनुअली मेंटेन हो रही है, पार्टली सॉफ्टवेयर, लेकिन वो कहता है कि अगर कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में यूज कर रहा है तो उसके ऊपर एडिट लॉग आपका एप्लीकेबल है। हो सकता है वो एफए रजिस्टर, फिक्स एसेट रजिस्टर मैनुअली मेंटेन करता हो, राइट? तो वहां पर एडिट लॉग वाली बात नहीं चलेगी, लेकिन वो दूसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर यहां मेंटेन कर रहा है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, इन्वेंट्री हो सकता है मैनुअल रखता हो। तो अगर मैनुअल जो बुक्स है तो आपको यू हैव टू कैटेगराइज कि ये चीज मैनुअल है और ये चीज कंप्यूटराइज्ड है। अगर मिक्स है, अगर सिंपल है कि सारा का सारा मैनुअल है, तो फिर आपको सिंपली यही लिखना है कि सिंस द कंपनी हैज मेंटेन्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनुअली, हेंस रूल 11G इज नॉट एप्लीकेबल, राइट? लेकिन अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में है तो वी हैव टू राइट, और वी कैन नॉट टेक दिस स्टैंड कि उसने ईयर एंड पे बुक्स लिखी हैं, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट हैज टू बी मेंटेन्ड रेगुलरली। और कंपनीज एक्ट के अंदर एक प्रोविजन है सर कि बुक्स ऑफ अकाउंट हैज टू बी kept at the registered office of the company or the corporate office of the company, and it should be open for the board of directors on daily basis. कोई भी डायरेक्टर उसका इंस्पेक्शन कर सकता है। तो अगर बुक्स मेंटेन ही नहीं है तो डायरेक्टर इंस्पेक्शन कैसे करेगा? तो टू माय माइंड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज टू बी मेंटेन्ड रेगुलरली, अकाउंटिंग हैज टू बी डन रेगुलरली। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि हमने ईयर एंड पे एक्सरसाइज किया कुछ की, तो फिर एक और बड़ा क्वेश्चन रेज हो जाता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड प्रॉपरली। सर इसमें वो बताइए, जो अगर मेंटेन नहीं कर रहे जी तो सर। उसमें कैसे पॉजिटिव नोट में क्वालिफिकेशन कैसे आए? हाँ, पवार साहब ने कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लेट्स अप्रिशिएट कि एक हमें नेगेटिव रिमार्क्स देने के पॉजिटिव वे में कैसे दें। तो ये इसमें सर वो बड़ी, स्मॉल कंपनीज हैं जिसके हाँ अकाउंट भी कई बार हमारे ऑफिस में ही मेंटेन होते हैं, जी सर। तो उसमें ई ट्रेल वाला तो होगा नहीं। हाँ, तो उसमें सर सिंपली यही है कि देखो हमारी ऑडिट रिपोर्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है रिपोर्ट ऑन दी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कई लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि अगर हमारा सेकेंड पार्ट क्वालिफाई हो रहा तो क्या फर्स्ट पार्ट इफेक्ट हो रहा है? फर्स्ट पार्ट का मतलब जब हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, तो क्या हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू इफेक्ट हो रहा है उससे? नहीं, उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। पूरे नहीं पड़ेगा ना। तो पहले पार्ट को हम छोड़ देते हैं, स्मॉल कंपनीज की बात कर रहा हूं केवल। हाँ जी। सेकेंड पार्ट पे आते हैं जहां पे वो बात कर रहा है कि रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी मैटर्स, और वहां उसने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कि क्या एडिट लॉग लगाया गया है। तो वहां सिंपली इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस नोट में भी यही सजेस्ट किया कि नहीं लगाया गया है तो वी मस्ट सबमिट कि भाई ये एडिट लॉग नहीं लगाया गया है। द कंपनी हैज यूज्ड हैज नॉट यूज्ड द बेसिकली ऑडिट लॉग फैसिलिटी ड्यूरिंग द ईयर। तो उसके रीजन भी साथ में देना पड़ेगा क्यों नहीं लगाया, हाँ, बिकॉज ऑफ। अब मैनेजमेंट को एक कम्युनिकेशन जाना चाहिए भाई क्यों नहीं लगाया। तो उसमें कि यही कह सकते हैं कि मैनेजमेंट है बेसिकली इम्प्लीमेंटेड इन फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, या कुछ लोग कह सकते हैं कि मार्च में लगा दिया या मिडिल ऑफ द ईयर। अगर किसी ने अप्रैल में न लगा के मई 23 में लगाया, तब भी लिखना पड़ेगा कि अप्रैल में एक्टिवेट नहीं किया, मई से एक्टिवेट किया है, राइट सर? और इसमें बेसिकली पावर साहब 3 क्लॉजेज इफेक्ट हो रही हैं जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। एक तो उस क्लॉज में आपको जहां पे स्पेसिफिक क्वेश्चन है वहां तो लिखना ही लिखना है, लेकिन एक और हम कमेंट्स करते हैं सेक्शन 143(3)(b) में, क्लॉज बी में, जहां लिखते हैं प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन मेंटेन्ड बाय द कंपनी। तो वहां लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट द मैटर्स स्टेटेड अंडर क्लॉज सो एंड सो। जहां पर हम 11G को निगेट कर रहे हैं उस क्लॉज को रेफरेंस में डालना पड़ेगा जब हम 143(3)(b) की रिपोर्टिंग कर रहे हैं सर। और एक और क्लॉज पावर साहब इसमें इफेक्ट हो रही है, 143 सबसेक्शन 3 की क्लॉज H, जो कहती है कि अगर कोई आपकी ऑडिटर्स रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन, रिजर्वेशन या ऑब्जर्वेशन है तो इट हैज टू बी गिवन
अगेंस्ट पॉइंट नंबर एच, तो वहां भी लिखना पड़ेगा कि अबर ओपिनियन इज क्वालिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एंड सच मैटर, बस। या अबर रिमार्क से रिजर्वेशन कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कह तो वो सकते हैं। अदर रेगुलेटरी भी तो सर आ ही रहा है ना, हाँ, अदर रेगुलेटरी में इसमें डालने की क्या जरूरत है फिर? नहीं, क्योंकि वो ये क्लॉज 143(3)H स्पेसिफिक कहता है कि पूरी रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि रिपोर्ट अब इतनी लेंथी हो चुकी है ना सर, तो 143(3)H अगर आप मेरे से पूछो तो एक तरह से जजमेंट है ऑडिटर का, जहां वो इकट्ठा पूछ रहा है कि आप बता दो कि पूरी ऑडिटर रिपोर्ट में क्या क्या क्वालिफिकेशन है। या वो जो पॉइंट्स जहाँ स्ट्रेस देने वाला एक लिखते हैं हाँ, कि उसके अंदर डाला जाए, नहीं, ये जो गाइडेंस नोट ने भी सर कहा है कि 3 क्लॉजेज आपकी इफेक्ट ये होंगी। क्वालिफिकेशन में ही रहेगा, सब्जेक्ट टू हाँ, ट्रू एंड फेयर, सब्जेक्ट टू दिस। ना ना नो ना ना, पहला वाला पार्ट तो आपने खत्म कर दिया, रिपोर्ट ऑन दी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आपका ट्रू एंड फेयर है, वहां कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं किसी तरह की। सेकेंड पार्ट में जब आते हैं रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी मैटर्स, तो जहां हम कमेंट्स करते हैं बेसिकली, उन कमेंट्स में ये 3 क्लॉजेज आएंगी। उन्हीं कमेंट्स 143 सबसेक्शन 3 की जितनी भी ऑब्जर्वेशन है वो उसी क्लॉज में आती हैं। तो उस क्लॉज में 143(3) की बी वाली क्लॉज, जहां प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली जो पेनल्टी प्रोविजन है 50,000 से 5 लाख रुपए तक है कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह के ऊपर। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर नॉट फॉलोइंग इट, तो नोबडी कैन इम्पोज द पेनल्टी, सच काइंड ऑफ पेनल्टीज। सर वो तो वही है, जो पकड़ा गया वही चोर है, बाकी सब तो हाँ, ठीक ही है। तो अब पॉइंट यही कि ये प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, कि अगर मोस्ट ऑफ दी अगर ऑडिटर रिपोर्ट इस तरह की जाएंगी तो कुछ नहीं होने वाला। आइदर दे विल, हो सकता है कल को वो ये कहे कि स्मॉल कंपनी को एग्जाम्प्ट कर देते हैं, या कोई डेफरमेंट की बात करें, या कोई एमनेस्टी की बात करें। बट आपने जिस तरह से लगा दिया है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव नॉट फॉलोड इन द लास्ट ईयर। मोस्ट ऑफ द कंपनीज का मतलब मुझे अपना असेसमेंट ऐसा लगता है कि सर 80% कंपनियों ने नहीं किया इम्प्लीमेंट। हाँ, वो छोटी कंपनियों में तो सर हुआ ही नहीं। और सर बड़ी में भी नहीं हुआ पावा साहब। बड़ी कंपनियों में, लिस्टेड कंपनियों में अगर आप पढ़े रिपोर्ट्स उनकी, 80% कंपनी में इसमें ऑब्जर्वेशन मिलेंगी आपको, 80% कंपनी में। जब टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी जैसी कंपनी सर, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, अडानी, इस तरह की कॉर्पोरेट्स में जब है, क्योंकि उनके सेप में वो चीजें हर फील्ड में इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, जो ऑडिट ट्रेल, जो ऑडिट लॉग चाहिए था आपको, जो रिक्वायर्ड है लॉ में, तो बेसिकली दे इम्प्लीमेंटेड एट द लेटर स्टेज। और स्मॉल कंपनियों में जो स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर में अगर उसने इंप्लीमेंट नहीं किया है, उसने, थैंकफुली वो सॉफ्टवेयर में एडिट लॉग, विदाउट एडिट लॉग दोनों वर्जन अवेलेबल है, और कोई कहे कि हम उस वर्जन को चेंज कर दें, नहीं हो सकता सर, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उसके वो लिए लिख सकते कि स्मॉल कंपनी नेचर है और उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व करके कंपनी नहीं कर पाई। हाँ, अब जिस कंपनी में 10-20-50 ट्रांजेक्शन है सर, जरूरी नहीं है कि आप, हाँ, उतनी हो ट्रांजैक्शन, ज्यादा वाली बड़ी वाली में तो अलग चीज है। हाँ, बड़ी कंपनियों में तो फिर वो क्योंकि बैकडेट में वो चीज नहीं हो सकती, एंड इट मस्ट बी मेंशन्ड। कल को कोई कहे कि भाई कहाँ क्या चीज फंसती है, कि इसका एडिट लॉग आप दिखाओ, आपने कहाँ क्या रिकॉर्ड्स चेक किया था। तो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माई फ्रेंड्स कि इसमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है सर कोई। और मैक्सिमम होना क्या, कोई पेनल्टी आएगी, कुछ आएगा, तो इट इट विल बी डिस्पोज्ड ऑफ। कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बहुत बड़ी चोरी उसने कर दी। भैया एक चीज बहुत सारी कंपनियों में, जब बड़ी कंपनियों में भी रिपोर्टेड हो रही है, तो टू माई माइंड द अथॉरिटीज विल ऑल्सो बी लीनियंट इन दिस वी। क्योंकि एक कंपनी में जब, जहां बड़े बड़े जो मार्केट ऑपरेटर्स, जो मार्केट को चला रहे हैं, लिस्टेड कंपनीज चला रही हैं, उनमें अगर वो लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, तो स्मॉल कंपनीज के लिए, और एक तरफ आप स्मॉल कंपनीज को बहुत सारी रिलैक्सेशन देते ही रहते हैं, तो बट ये कि हाँ, डेफिनेटली ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आगे से इंप्लीमेंट जरूर करा देना चाहिए। कम से कम 23-24 नहीं हुआ तो 24-25 से तो इंप्लीमेंट हो ही जाए, सो दैट कि वन कैन से डायरेक्टर कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट टू दी ऑडिटर्स कि यस वी हैव इम्प्लीमेंटेड इट फ्रॉम दिस एंड दिस डेट। और वो अगर हम उस तरह से कह दे। जी सर, सर नमस्कार सर। सर जेके अग्रवाल जी मेरे पार्टनर भी हैं साथ में, और सर सैनी मुखमंडल साहब, के लिए हाजिर हुए सर। सर कैसे है सैनी साहब? बहुत बढ़िया सर, जो आप बता रहे हैं इसमें क्वेरी खाली वो उसको क्वालिफाई तो कर दें, जिसमें जी एडिट सर। लॉग नहीं लगा रखा, जी, लेकिन खाली अगर नहीं लगा रखा तो फिर इसकी ट्रू एंड फेयरनेस भी कुछ उसकी अफेक्ट होएगी। नहीं होगी सर। अब आपने बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन सर किया है। देखो, ट्रू एंड फेयर व्यू में बेसिकली ये देखना है कि हमारे कोई नंबर चल रहे हैं बैलेंस शीट के, हाँ, ठीक है। कोई नंबर चल रहे हैं सर ऑडिट नहीं है, कोई नंबर्स नहीं मिल रहे सर। इसके बाद कोई डिस्क्लोजर्स हमारे गलत मिसस्टेटेड है, हाँ, वो भी नहीं है जी।
वो भी नहीं है। कोई ओमिशन है किसी तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से? वो भी नहीं। नो नो नो, बिग नो। बिग नो। तो इसका मतलब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड नहीं है। तो सर ये जो हमारा स्टूडियो गाइडेंस नोट है उसमें कहीं ये ऐसा बाद में सर वो सूली पे जो चढ़ाने वाले हमारे वो जो FRI वाले वही पूछेंगे नहीं सवाल, हम्म इसलिए अगर गाइडेंस नोट में बात लिख के आ जाए तो थोड़ा सा सबको प्रोटेक्शन हो जाएगी ना। सही सर, मैंने इंसिस्ट किया था कि देखो गाइडेंस नोट ने हालांकि बिल्कुल ये भी नहीं लिखा है एक्सप्रेसली कि आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा लूज एंड जरूर छोड़ दिया। वो दैट शुड नॉट बी देयर टू माय माइंड, क्योंकि देखो कंपनी जब का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके मिसस्टेटेड नहीं है, अब केवल एक बात उन कंपनियों की रहती है जहां IFC है सर, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की रिपोर्टिंग भी है, तो आप वहां ये जरूर कह सकते हैं कि इसकी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की ये एक वीकनेस रह गई, क्योंकि ये बेसिकली IFC के लिए एक बहुत मेजर कंपोनेंट है या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। लेकिन जहां IFC वगैरह की रिपोर्टिंग को भी आपने एग्जेम्प्ट कर रखा है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को क्यों एग्जेम्प्ट कर रहा है? उसका सीधा सीधा लॉजिक यही है कि जो छोटी स्मॉल कंपनीज है उसमें इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल डिफरेंट तरह से बेसिकली एप्लीकेबल होता है। तो अगर देखा जाए स्मॉल कंपनी को आपने और भी बहुत सारी एग्जेम्पशंस दी हैं। जी 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 जी। तो उसका लॉजिक क्या? उसका लॉजिक यही है सर कि वहां पर उतना आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और मैं तो ये मतलब हमारा ये फर्म बिलीफ है कि अगर कोई मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नहीं है तो एटलीस्ट मैन ऑडिट रिपोर्ट तो क्वालिफाई नहीं हो सकती सर। जी जी। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपकी बात पे आगे बढ़ाता हूं सर थोड़ा सा। अगर कोई वन ऑफ द डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट, और वो हमसे क्वेश्चन करता है अदर लीगल रेगुलेटरी मैटर्स में कि कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई तो नहीं है, और हमने कहा यस वन ऑफ द डायरेक्टर इज डिस्क्वालीफाइड, हमारे पास एविडेंस है, उसने कहा है, तो क्या उस क्वालिफिकेशन से हमारी मैन ऑडिट रिपोर्ट इफेक्ट हो जाएगी ऊपर वाली? नहीं वो नहीं होगी। नहीं होगी सर। तो उसमें n नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और अगर n नंबर क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन है जिससे हमारे हाँ हर कोई पे मतलब नो है यस से उसकी ट्रू एंड फेयर नहीं इफेक्ट हो हाँ सकती। ट्रू एंड फेयर भी उससे इफेक्ट नहीं हो रहा है। कुछ जी जी कुछ क्लॉजेस से हो सकता है, बट कुछ क्लॉजेस से बिल्कुल नहीं, जैसे 164(2) का मैंने एग्जांपल दिया उससे बिल्कुल नहीं होगा। जी जी। तो कुछ मान लो कोई किसी तरह की रिजर्वेशन नीचे वाले पैराग्राफ में, बेसिकली हमारे जो फाइनेंशियल स्टेट जो रिपोर्टिंग का पैटर्न है वो इस तरह से है सर कि हमारी रिपोर्ट 2 भागों में डिवाइडेड है, और हम 2 तरह से हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट देते हैं। एक देते हैं फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में, और देखते हैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क में। जी जी मेरे साथ है सर। तो पहला पहला हम जब हमने उसको डिवाइड भी कर दिया 2 भागों में। पहले तो मिक्स थी, जी। पहले मिक्स सप्लाई थी, अब ये हाँ मिक्स सप्लाई नहीं है, अब ये सेपरेट सप्लाई है। क्यों पता लगा कि भाई GST के रेट कहीं कम गड़बड़ ना हो जाए, तो उन्होंने कहा इसको अलग कर दो, तो पार्ट A अलग कर दिया, पार्ट B अलग कर दिया। इसका इसका अगर हम पीछे का इतिहास पढ़े तो इसका इतिहास यही है सर कि पार्ट B को इसलिए अलग किया गया कि कहीं स्टेक होल्डर कंफ्यूज ना हो जाए कि कोई रेगुलेटर ने क्वेश्चन पूछा, ऑडिटर ने उसका जवाब नेगेटिव में दिया, तो उसे ये ना लगे कि इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है। जब ये स्टैंडर्ड रिवाइज हुआ सर 700, तो उसके पीछे ये लॉजिक दिया गया कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे पहले अपना व्यू दे दें, उसके बाद रेगुलेटर आपसे भाई ये है क्या पार्ट बी ये है कि रेगुलेटर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कंपनी एक्ट आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसका रिप्लाई दे रहे हैं। सो बेसिकली इट इज फैक्ट्स, फैक्चुअली है कि क्या फैक्ट्स, जो उसने पूछा क्वेश्चन आपने रिप्लाई दे दिया, जो कुछ कार्यों में क्वेश्चन पूछा आपने रिप्लाई दे दिया। बट जो पार्ट ए है सर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सीधा बताता है कि आप ये बताएं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं, और वो कब ट्रू एंड फेयर नहीं होंगे? जब उसके अंदर कोई मिस स्टेटमेंट होगी, और वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल होगी। तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट होगी तो आप अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करेंगे। इसमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है ही नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन्ड है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मेंटेन्ड है, डेली बेसिस पे मेंटेन्ड है। केवल एक आपने की नई रिक्वायरमेंट आई कि भैया इसमें एडिट लॉग होना चाहिए, दैट वन नॉट इम्प्लीमेंटेड। तो हमारे कोई नंबर्स नहीं हिल रहे, हमारे कोई डिस्क्लोजर्स नहीं हिल रहे, हमारे कोई ओमिशंस नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। So this, sir, I think this is a very, very practical reply that you have given. But in few cases, what generally small companies में जी सर, either the edit log was opened after 31st of March 24 when the books were written in 7 days or 8 days time, 10 days time, or it was somewhere opened in the middle of the year. यस यस
what should be the reporting for in those cases? नहीं, अगर बीच में इम्प्लीमेंट किया है तो आप, मैं फिर कहता हूँ लिस्टेड कंपनियों ने भी कहा कि इसने भैया 1 अप्रैल से नहीं लगाया था, इसने सर नहीं, स्मॉल कंपनी की बात कर रहे हैं सर, वेरी स्मॉल स्मॉल कंपनी में भी अगर उसने मिडिल ऑफ द ईयर में इम्प्लीमेंट कर दिया है तो वी कैन राइट कि इट हैज इम्प्लीमेंटेड दिस एडिट लॉग फैसिलिटी फ्रॉम 15th of July। ओके, वो अगर नहीं है तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड नोट। हाँ, नहीं है, और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव भाई आप 31 मार्च तक भी अगर नहीं है तो बोर्ड अपनी रिपोर्ट में लिखेगा ना कि हमने अगले साल इंप्लीमेंट कर दिया है, और हम उससे एक रिप्रेजेंटेशन ले लें कि आपने अगली नेक्स्ट ईयर इंप्लीमेंट कर दिया है। कुछ लोगों ने ये कहा कि हम ऑडिट रिपोर्ट में लिख दें कि इसने साहब जुलाई 2024 से इंप्लीमेंट कर दिया। टू माई माइंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आप 23-24 का ऑडिट कर रहे हैं, 23-24 की उसने बात की, हम 23-24 पे हमने देख के कह दिया भाई इस साल में इंप्लीमेंटेड नहीं है। बहुत सेफर साइड लेके कि उसने भाई आपकी ऑडिट रिपोर्ट से पहले इंप्लीमेंट कर दिया तो नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन है। और फिर भी अगर आप लिखना चाहे तो यू हैव द लिबर्टी, आप लिख देंगे भाई उसने नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल किया है। किसी ने कहा इन द, हालांकि कहीं कहीं गाइडेंस नोट में भी ये चीज स्मेल करने को मिलेगी आपको कि द मैनेजमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग इट। सर अगर स्मॉल कंपनी स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर पे है तो प्रोसेस तो नहीं हो सकता सर, इट इज अ 5 minutes जॉब। मैं सर कुछ ऐड करूं इसमें? सर मैं सर जैसे ही ये वेबिनार सेमिनार करता ही रहता हूं, तो इसमें एक जो हमारे स्पीकर थे जी, उनका ये व्यू था हम्म कि मार्केट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत सारे हैं, हम्म और उनसे आप एक सर्टिफिकेट लेके रखिएगा हम्म कि फला फला टैली में या जो भी जिसमें भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट रख रहे हैं हमारे क्लाइंट, हम्म कि इसमें एडिट लॉग इंटैक्ट है जब से ये एडिट लॉग शुरू हुआ। क्योंकि हो सकता है कि आपने 7 जुलाई को शुरू कर दिया एडिट लॉग और बीच में बंद करके 2 एंट्री पास करके फिर शुरू कर दिया उसको, तो उसका एडिट लॉग तो बीच में गड़बड़ हो गया। तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर से एक सर्टिफिकेट लेके रखें कि द ऑडिट लॉग वाज इन फोर्स फॉर द फुल ईयर, और उस सर्टिफिकेट की रेफरेंस देते हुए एज पर द हमारे यहाँ उसमें लिखे ऑडिट रिपोर्ट में या जो भी है, या नोट्स ऑन अकाउंट्स में या जो भी है, रिपोर्ट कि में एज पर लिखेंगे। द सर्टिफिकेट इशूड बाय सो एंड सो द ऑडिट लॉग वाज इन फोर्स ड्यूरिंग द ईयर। देखो सर मैं इस पे ऐड कर दूं सर। लॉग पे कंपनी पे जाके टिक करते हैं, उस पर डेट आ जाती है कि किस डेट में आपने कन्वर्जन किया डाटा दूसरे डाटा से एडिट लॉग में लेके आए, पूरी डेट आ जाती है सर उसमें इम्प्लीमेंटेशन की। राजेश भाई उसमें फुल डिटेल आ जाती है कि आपने किस डेट में क्या क्या काम किया है। हाँ जी। तो जो हम ये बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि जो स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर 3-4 तो मैं यूज कर रहा हूँ कि उन सबसे मेरी बात भी हुई है। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 2 दिन के लिए उसको इंटरप्ट कर दो फिर। डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है इसको आइडेंटिफाई करना। हाँ, और उसका भी रीजन मैं बताऊं सर क्या हुआ। जैसा कि उसमें रीजन ये रहा कि वो सॉफ्टवेयर वाले से जब डायरेक्ट बात की मैंने मुंबई ऑफिस में, उसने कहा भैया मुझे अपना सॉफ्टवेयर चलाना है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम नहीं काम कर सकते कोई। यस सर, यस। हाँ, हम कोई इस तरह की छेड़ाछाड़ी अपने सॉफ्टवेयर से नहीं कर सकते सर, हमारी और लॉजिकल भी है सर। बिल्कुल। जब हम कोई इस तरह की अनएथिकल चीज आपको नहीं बना सर, के, फिर अपनी अपनी सीए की स्किन सेव करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट ले लें, इस सर्टिफिकेट क्या सर, एडिट लॉग का आप रिकॉर्ड ले लें, उससे प्रिंट हाँ आउट जी। लेके रखें। प्रिंट आउट अपना सॉफ्ट कॉपी निकल आएंगी एडिट लॉग हाँ की सारी। ठीक, वो भी ठीक है, वो भी ठीक। एविडेंसेस तो हमें रखने ही है। हाँ, जहां पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड, आपकी बात तो हाँ मैं मानता हूँ, जहां से आप ईआरपी वगैरह चल रहे हैं वहां वी कुड नॉट बी सो कॉम्पिटेंट टू वेरीफाई इट एग्जैक्टली। तो वहां जी जी। एक तो हमें जो एविडेंसेस लेने वो ले ही लेंगे, साथ में सपोर्टिंग एविडेंसेस के लिए हम एक्सपर्ट के सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। ले और सकते या जो लोग आउटसोर्स कर रहे हैं अपनी अकाउंटिंग को, बहुत सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में सपोर्ट होता है बाहर से, तो उसमें एक 3402 का स्टैंडर्ड हमारा लगता है कि अगर कहीं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज आप ले रहे हैं तो उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से या उसके ऑडिटर से भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं वो। बट ये ऑडिट ट्रेल का जो मैटर इतना ज्यादा, कई बार कहते हैं ना हम लोगों ने इतना उछाल दिया, नहीं तो ये बड़ी आराम से रिपोर्ट में सब चला जाता। अब तो खैर सबको मालूम है कि इसमें ऑडिटर्स परेशान है, जैसे 600 के पीछे बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं सर। वो कहते हैं ना बात निकलती है तो फिर मन नहीं दूर मानता तक आप लोगों जाती को। है। हाँ, दूर तलक जाती है। सैनी साहब 600 स्टैंडर्ड के ऊपर आप देख रहे हो कि कितने बड़े बड़े बयान आ गए और बड़े बड़े लोगों के आ गए, जो बात करता है प्रिंसिपल ऑडिटर और कंपोनेंट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की।
जो कई दीवान हाउसिंग और रिलायंस कॉमर्शियल की वजह से चीजें आई। राजेश भाई आप प्रिंसिपल ऑडिटर हैं तो बिल्कुल आप आंख बंद करके आप प्रिंसिपल ऑडिटर की तरह काम करेंगे। टू माय माइंड इट इज नॉट लाइक दैट। यू हैव प्रोफेशनल स्केप्टन तो वहां भी आपकी आएगी। और ये मेरा फर्म बिलीफ है सभी फ्रेंड्स के साथ कि वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, नोबडी कैन बेसिकली इज पैरेलल टू दिस प्रोफेशन। ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती कि सैनी साहब ने बैलेंस शीट देख ली हो और कोई मटेरियल चीज उनसे छूट जाए। या राजेश बताओ राजेश भाई मैं गलत कह रहा हूं तो? नहीं नहीं छूट सकती यू आर राइट। सर। हमारी वो स्किल सेट, हमारी वो टेक्निकल कॉम्पिटेंस मैचलेस है सर। मैं तो अपने सभी भाइयों से ही कहता हूँ आप एक बार बैलेंस शीट ओपन है, अगर आपने बिल्कुल ओपन माइंड से देख ली ना सर, बच नहीं सकती मटेरियल चीज। इमैटेरियल की तो मैं बात ही नहीं करता, हमारा स्टूडेंट मटेरियल चीज आपकी नजर से नहीं बच सकती। अब अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है, फिर तो कॉफी डे भी हो सकता है ना। मतलब जहां पे आपने सत्यम भी हो सकता है। सत्यम, सत्यम तो पुरानी चीज हो गई सर, अब तो नई नई आ गई, नई नई कॉफी चीजें डे आ आ गई। गया नया। कॉफी अब डे तो आ कॉफी गया, डे। हाँ कॉफी डे आ गया जहां पे ऑडिटर उसका 4 साल से डिस्क्लेमर दे रहा है। लास्ट 4 ईयर से ऑडिटर्स ने डिस्क्लेमर दिया है सैनी साहब कॉफी डे के अंदर। तो पॉइंट यही कि हमें अपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस, और नफरा का कोई भी ऑर्डर आप फ्रेंड्स पढ़ेंगे शुरू होता है ऑडिटर्स रिपोर्ट से, मिडिल में आती है ऑडिटर्स रिपोर्ट और उसका समापन भी ऑडिटर्स रिपोर्ट। इसका मतलब जन्म भी ऑडिटर्स रिपोर्ट से हो रहा उसका है, पालन पोषण भी ऑडिटर्स रिपोर्ट से हो रहा, और उसका क्रियाक्रम भी ऑडिटर्स रिपोर्ट से। तो नफरा सर क्या ये कंपनीज पे डायरेक्टर्स वगैरह पे एप्लीकेबल नहीं है? डायरेक्टर्स को कोई पेनल्टी वगैरह नहीं नहीं लगाते नहीं हैं? है, नहीं है। अनफॉर्चुनेटली नफरा इज ओनली एंड ओनली फॉर द ऑडिटर्स। उनका डोमेन ऑडिटर से बाहर नहीं है। किसी भी सर सेक्शन में, किसी भी एक्ट में, हम्म, जैसे कि अभी मैंने नफरा के कई ऑर्डर देखे हैं, जी 10-10 करोड़ की, 2-2 करोड़ की, 5-5 करोड़ की पेनल्टियां लगा रहे हैं ये ऑडिटर्स पर। हाँ हाँ। लेकिन किसी भी सेक्शन में आज तक डायरेक्टर पे इतनी पेनल्टी नहीं लगी, चाहे वो नहीं, सेबी भी हो। उसमें उसमें राजेश भाई वी शुड अप्रिशिएट कि जो फीस, जो जो पेनल्टी लग रही है ना वो फीस बेस्ड है। लेट मी मेक इट क्लियर, ओके एब्सोल्यूट नहीं है, फीस बेस्ड है। ओके ओके। आपने पहले अपनी तिजोरी गर्म की हुई है तो लग रही है, अदरवाइज नहीं लग रही। अगर 5 करोड़ की फीस चार्ज है तो 10 करोड़ की पेनल्टी है। अच्छा। हाँ, ओके ओके मैक्सिमम डबल ऑफ द ऑडिट फी, मैक्सिमम ओके। ऑफ द सिंगल ईयर, राइट। तो वो फीस ऐसा नहीं कि, और अब बात आती है मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के लिए बहुत रेगुलेटर्स बैठे हैं सर। जब नफरा में केस ऑन होता है तो ऐसा नहीं ऑडिटर्स केवल नफरा को देख रहा है, बाकी सारी एजेंसी, चाहे वो ईडी हो, चाहे एसएफआई हो, चाहे एमसीए हो, ऑल दोज एजेंसीज आर लुकिंग एट द मैनेजमेंट। नहीं सर, मैं यहाँ थोड़ा सा डिफर हूँ सर। क्या? जितनी भी आप, मैं एजेंसी का नाम लूँ या आप भी नाम लें, हाँ वहाँ सर आजकल मैनेजमेंट के साथ साथ सीए को भी एक्यूज बनाते हैं सर, वहाँ हाँ, छोड़ते नहीं नहीं है सीए नहीं को भी। नहीं, वो तो बना ही रहे, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई डाउट हम्म। नहीं है। पेनल्टीज टू बी पेड बाय द ऑडिटर्स फ्रॉम हिज ऑन पॉकेट। नहीं सर, ऑन पॉकेट से नहीं है, वो जो उसने फीस पहले सालों में ली है उसी में से उसको देना है। वो तो खा पी गए सर, अब हाँ, खाना देंगे। नहीं बट उन केसों को आप पढ़ो राजेश भाई, अगर पढ़ोगे हाँ तो आप अपनी कॉन्शियस से पूछो फिर उसके बाद। वी आर बिल्कुल ठीक नॉट बात। डूइंग सच। मैं मैं अपने जितने मेरे फ्रेंड्स यहाँ जुड़े हुए हैं, 74 लोग अभी यहाँ जुड़े हुए हैं, या जो लोग बाद में सुनेंगे, मेरा फर्म बिलीफ है राजेश भाई, हम में से कोई वो गलती नहीं कर सकता जो उन ऑडिटर्स ने की होगी। ओके ओके। ये मैं बात इतने अथॉरिटी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि द पर्संस हु आर लिसनिंग द प्रोग्राम्स, हु आर अटेंडिंग द प्रोग्राम्स, और दैट टू इन द मंथ ऑफ सितंबर जब काम का टाइम है, तो उसकी इसका मतलब स्पिरिट अपडेट रहने की है, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म है, इसलिए वो सुन रहे हैं। तो वो गलती मेरे किसी फ्रेंड से नहीं हो सकती। मैं तो ये मानता हूं जो प्रोग्राम्स के साथ या जो अपने आप को अपडेट रखते हैं, जरूरी नहीं हम लोगों से रखें, अपनी लाइब्रेरी से रखें, बेसिक चीजें मिसिंग है उनमें सर। जैसे मैंने राणा सुगर का केस, आई यूज टू बेसिकली, आई एम लर्निंग आउट ऑफ द नफरा ऑर्डर्स बाबा साहब। मैं मतलब वो एक आपकी लाइब्रेरी है, आपकी लर्निंग प्रोसेस है सैनी साहब। आप एक ऑर्डर को पढ़ोगे ना, यू विल एंजॉय इट। आपको लगेगा कि यार इस ऑडिट, वास्तव में इसमें तो टोटल ऑडिट फेल्योर थी भाई। 2 करोड़ 5 करोड़ की
इन वन ऑफ द रिलायंस कॉमर्शियल में क्या हुआ, एक ऑडिटर कह रहा है सर कंपनी ने फ्रॉड कर लिया, and that fellow resigned after reporting to the MCA, and another fellow is saying that no, management is right, they have not done any kind of fraudulent activity. What is this, sir? मतलब इस आपके आगे प्लेटर लगा हुआ है और आप उसको नहीं मान, यू आर इग्नोरिंग इट एंड यू आर गिविंग द क्लीन ओपिनियन। तो बताओ पापा साहब गलत होगा नहीं होगा, बताओ आप। आपका एक ऑडिटर में, मैं नहीं कहता जूनियर सीनियर ऑडिटर, मैं कहता हूं चलो आपका पियर्स जो कि एमसीए में रिपोर्ट करके रिजाइन कर रहा है कि इस कंपनी ने फ्रॉड किया है, और दूसरा ऑडिटर कह रहा नहीं कंपनी ठीक है अपनी जगह, और उसके बाद अगर पेनल्टी लगती है तो आई डू फियर कि अगर उसके बाद भी हम उसको क्रिटिसाइज करें। सर ये तो सारे केस फिर पेनल्टी के साथ डीसी में भी जाते होंगे। नहीं सर राजेश भाई, अब क्या हो गया कि जो नफरा का डोमेन में आ गई कंपनी, वो डीसी में नहीं आएगी उस पॉइंट के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ डोमेन अलग कर दिया, अब तो बांट दिया कि नफरा ने कहा कि देखो बड़े बड़े को हम देखेंगे, क्रोकोडाइल सब देखेंगे, आप फिशिस को देखो। राइट, इट इज नॉट योर डोमेन, लेट मी सी द क्रोकोडाइल्स एंड यू प्ले विद द फिशिस। तो अब बिल्कुल डिमार्केट कर दिया कि भैया हमारी जो कंपनी हमारे डोमेन में आ गई, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन आपके पास ऑन है किसी और वजह से और वो नफरा में रेफर हो गई किसी एजेंसी से, तो देन द केस विल बी शिफ्टेड टू नफरा, अगर उसके डोमेन में आ रहा। सर ऐसा कोई केस है जहां नफरा ने किसी सीए को, ऑडिटर को क्लीन चिट दी हो? देखो सर, जिसमें उन्होंने क्लीन चिट दी होगी ना, उनके ऑर्डर पब्लिश ही नहीं किए होंगे टू माय माइंड। क्यों? वो भी पब्लिश होने चाहिए सर। हाँ होने चाहिए, क्योंकि अभी तक, और दूसरा सबसे बड़ा मुझे हो सकता है इसलिए भी ना हुआ हो कि सारी लिस्टेड कंपनियों के नफरा ने केस अपने आप तो पिक किए नहीं है, किसी न किसी एजेंसी ने रेफर किए हैं, मोस्टली सेबी ने रेफर किए हैं, किसी और एजेंसी ने, तो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ थी इसलिए वो रेफर हुए। ऐसा नहीं कि नफरा आइदर बाई सेबी और बाई एनी अदर एजेंसी, और लिस्टेड कंपनियों पे लगेगा, अदरवाइज ये लगेगा नहीं। साल में 25 केस होते थे डिसाइड, तो आज 250 केस हो रहे हैं। सर द ऑर्डर ऑफ would go to High Court or Supreme Court? देखो नफरा के ऑर्डर सर अपीलेबल है एनसीएलएटी में, नेशनल अपीलेट अथॉरिटी, एनक्लाड में which is, हाँ जो कि sir it means NAFRA order is equivalent to High Court. NAFRA orders are appealable before the NC. It means that order is equivalent to High Court order. High Court order, yes, exactly. Yeah. और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दीवान हाउसिंग के केस में जो ऑडिटर्स एनसीएलएटी में गए, दे गॉट डिफीटेड। उन्होंने कई ग्राउंड्स पे नफरा के ऑर्डर्स को चैलेंज किया था। एक तो ये कहा था कि प्रिंसिपल ऑडिटर अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्रांच ऑडिटर अपने काम के लिए है, और भी कई चीजें उन्होंने कहा था, आप पुराने सालों के केस नहीं खोल सकते हमारे। तो वो सब चीजों पे उनकी एनसीएलएटी ने रिजेक्ट कर दी थी, और दे ऑल आर इन फेवर ऑफ नफरा। अब वो तो बिग फोर भी सुप्रीम कोर्ट से हार करके आए नफरा के ऑर्डर के अगेंस्ट। यस आए हैं। और आप ये देखे, देखो बिग फोर कोई ऐसा नहीं ऊपर से कोई भगवान उतर के आ गए, बल्कि मुझे ऐसा लगता राजेश भाई कि आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग बिग फोर, जो ग्रिप हम लोगों की है ना ऑडिट के ऊपर, वो कहीं ना कहीं वहां मिस हो जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है जब हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, ऑर्डर पढ़ रहे हैं नफरा के, तब, क्योंकि अगर इतनी मेजर चीजें छूट रही हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, क्योंकि जब एक ऑडिटर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, वहां पर क्या होता है, मल्टीपल स्टाफ होने की वजह से कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन या कहीं कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग, बट हाँ उनकी प्रेजेंटेशन में नो डाउट दे आर मैचलेस, विच वी आर बेसिकली लैकिंग, बट एज फार एज फाइंडिंग्स आर कंसर्न, कहीं ना कहीं मिस है कि इतना बड़ा अगर फ्रॉड हो जाता कंपनी के अंदर और पता नहीं लगता है, तो कहीं ना कहीं ऑडिट लैप्सेस तो है। और मेरा तो बिल्कुल फर्म मानना ये है सर कि कोई भी ऐसी कंपनी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साइन की है ना, उसमें कोई मटेरियल फ्रॉड अगर एक्सेप्शनली कोई हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज उसकी नजर से ऐसा नहीं है कि बच सकता हो अगर उसने ढंग से काम किया है। आई एम नॉट सेइंग कि दे आर बेनिफिशियरी, दे आर नॉट बेनिफिशियरी एट ऑल, बट दे आर ट्रीटेड एज द बेनिफिशियरी। That is the black part of this basically disciplinary mechanism.
तो मेरी Sir, आप my सबसे हाथ जोड़ के विनती है सर कि ऑडिट ट्रेल में बिल्कुल रिस्क ना लें सर। sir, one question, Sir. small. Sir. Sir, as you said just now, Hmm. the audit trail which was opened during the year, Yes. and we are writing in our report that from this and this date the audit trail was Has been and implemented. blog was open and all that. Yes. So besides institute's points of view or standards point of view, assurance point of view, how this particular thing would be viewed by ROC? That my point is. देखो सर, हालांकि आई एम नॉट डे टू डे इन्वॉल्व इन दोज प्रोसेस, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर मोस्ट ऑफ द ऑडिटर्स विल राइट लाइक दिस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर डिस्चार्ज अगर ऑडिटर्स करेंगे, कुछ नहीं होगा सर। It is the law of the land that public smoking is prohibited. You should not smoke at such and such place, and everybody is smoking. तो how many challenges are there? नहीं है। जब कोई लॉ आप इस तरह का बना दे जो वाइडली वायलेट होने लगे, तो फिर वो लॉ नहीं रहता सर। आपने ये एक लॉ अभी ऐसा बनाया है जो वाइडली वायलेट हो रहा है, वाइडली वायलेट हो रहा है। तो अगर अब उसमें हमारे प्रोफेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि उसको उसी स्पिरिट से डिस्चार्ज कर दे। हाँ, अगर 95 ऑडिटर ने ओके रिपोर्ट दी, 5 ने आपने लिख दिया, आपने लिख दिया, हो सकता है आरओसी चिट्ठी दे दे आपको कि भैया हम आपको चिट्ठी दे दे, मैनेजमेंट को चिट्ठी देगा, आरओसी ऑडिटर को नहीं देगा। लेट बी वेरी क्लियर that the letter will not be issued to the auditors because auditors had discharged his duty. The letter will go to the management, of course. सर एक सवाल था कि मान लो ऑडिट ट्रेल का सीए ने नहीं किया रिपोर्टिंग, या गलत रिपोर्टिंग हो गई, लेकिन अभी आपने कहा कि उसमें ट्रू एंड फेयर पे कोई इफेक्ट हुआ नहीं क्योंकि मिस स्टेटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या इसी पॉइंट पे कोई भी एजेंसी नफरा पे जा सकती है अंगेज सीए? नहीं, देखो अगर लिस्टेड ऑडिट ट्रेल पॉइंट पे, देखो लिस्टेड कंपनी नहीं है तो बिल्कुल नहीं जा सकती, पहली चीज, क्योंकि नफरा का डोमेन लिस्टेड कंपनी। अच्छा, लिस्टेड कंपनी में इस तरह की होता, देन जब मिस स्टेटमेंट नहीं है, ट्रू एंड फेयर रिव्यू इफेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया अदर लीगल रेगुलेटरी मैटर्स में, उसका आपने गलत जवाब दिया। तो डीसी में तो आई गया केस। नहीं, डीसी में नहीं, अगर लिस्टेड है तो नफरा के डोमेन में भी आ गया। हाँ भाई, आपसे पूछा गया कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई नहीं है, आपने कह दिया नहीं है डिस्क्वालीफाई, जबकि एमसीए पे वो डिस्क्वालीफाइड है। तो आप गलत मतलब नोइंगली यू आर मिसगाइडिंग द स्टेक होल्डर्स ना। तो जहां पर स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उस क्वेश्चन का आप जवाब दे रहे हो। तो ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी थी जो उसने जवाब दे दिया, बाकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड एजुकेट टू द मैनेजमेंट। मैं तो आप आज के टाइम में सभी अपने फ्रेंड्स के साथ ओपनली शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले कोई कंपनी बनाने आता है, उससे पूछता हूँ क्यों, किस शौक में बना रहे हो है, क्या है, प्रोप्राइटरशिप इज द बेस्ट व्हीकल, लेट्स मेक पार्टनरशिप, और बहुत अगर जंप मारना है तो एलएलपी बना लो। यस, एलएलपी मच बेटर। आपकी क्रेडिबिलिटी भी है मार्केट में, रेपुटेशन सब कुछ बनी रहेगी, इक्विवेलेंट टू प्राइवेट लिमिटेड। जब प्राइवेट लिमिटेड पे, हालांकि द डे विल कम कि आपका एलएलपी पे भी ये चीज इंप्लीमेंट हो जाए, बट अभी नहीं है। तब जब तक नहीं है, जब तक तो आप एंजॉय कर सकते हो उसको, क्योंकि ये इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं जो बेसिकली कहीं ना कहीं डिस्करेज कर रही हैं बिजनेसमैन। Sir, this particular question you have replied, but now as we have discussed with more and more people during the last few days, for the last few months, sir, majority, not majority, but many of the cases are those where chartered accountants are writing the books of accounts for private limited companies, and those are very, very small companies. And there, the edit log was opened after 31st of March. Then what is to be done? देखो उसमें पार्टी को पता ही नहीं है, देखो सर, पता ही नहीं है। देखो सर, अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी ये प्रूव कर देती है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बुक्स लिखी हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर्स के लिए इससे ज्यादा मरने वाली कोई बात है ही नहीं। कोई बात नहीं है, नहीं, राइट। ठीक है, आप डिस्क्वालीफाइड थे, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू ऑडिट दैट पर्टिकुलर कंपनी एंड यू हैव ऑडिटेड। तो आपने सेक्शन 1, आपने कोड ऑफ एथिक्स की वायलेशन की, आपने सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट की वायलेशन की, तो वो जितने चीजें हैं वो तो सब आपको फेस करनी पड़ेंगी। सो बेसिकली वन शुड डेमोन्स्ट्रेट कि द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नॉट बीन रिटन बाय द ऑडिटर्स। ये तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। और अब बात आती है सेकंड आपका जो क्वेश्चन है, तो अगर उसने नेक्स्ट ईयर से इंप्लीमेंट किया है तो लेट्स राइट कि मैनेजमेंट ने नेक्स्ट ईयर से किया, उससे रिटन रिप्रेजेंटेशन भी आपके पास होनी चाहिए। देखो, आप ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर कोई भी ऑब्जर्वेशन लिखते हैं तो
ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कम्युनिकेट इट फर्स्ट टू दी मैनेजमेंट। हम बोर्ड को पहले उसको और उससे उसकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लें कि हाँ इट हैज हैपेंड और ये हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सो दैट कि कल जब आप उनको कोई चिट्ठी आएगी उस समय वो आपको लेटर नहीं देंगे, माइंड इट। वो एक तो इट हैज टू बी टेकन बिफोर साइनिंग योर ऑडिट रिपोर्ट, सब कुछ मिल जाएगा। तो इसके लिए गाइडेंस नोट ने भी कहा है कि पूरा का पूरा गाइडेंस नोट ने एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिट ट्रेल के ऊपर बनाया हुआ है कि आप ये ऑडिट ट्रेल के ऊपर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के साथ करके उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जरूर ले लें। तो ऑडिट ट्रेल का तो एक ऐसा मैटर है कि जो मेरे हिसाब से जिन कंपनियों में इंप्लीमेंट नहीं है, वी शुड नॉट गो फॉर एनी एथिकल काइंड ऑफ अप्रोच, और बिल्कुल प्रॉपरली आप उसको रिपोर्ट करें। और अगर ज्यादातर ऑडिटर्स रिपोर्ट करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई, हम सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकते बट कोई एक्शन होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने करा, कुछ ने नहीं। 80% साफ सुथरी निकल गई, 90% और कुछ 2-4% लोगों ने रिपोर्ट कर दिया। तो ऑफ कोर्स फिर उस आरओसी टू आरओसी डिपेंड करेगा। आप ये देख रहे हो कंट्री के अंदर हर आरओसी से हर तरह के नोटिस आते हैं। कुछ आरओसी से कुछ बिल्कुल ही नहीं आते, कुछ से कोई एक्टिव आ गया तो उसने कुछ देख लिया। अब इसमें यही है कि एक और चीज है कि ये डिजिटल क्वालिफिकेशन किस तरह से जाएगी। तो जब आपका फॉर्म आपका एमसीए का भरा जाता है तो उसमें अगर आप डालते हो कि कोई क्वालिफिकेशन ऑडिटर्स रिपोर्ट में है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज एडवर्स, मतलब एक रिजर्वेशन रिमार्क्स, और वहां पर उसको पुट करना है। कुछ लोगों ने, हमारे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि अगर आप उसको डिजिटल फॉर्म में नहीं देते हैं, देन हाउ द अथॉरिटी विल कम टू नो इट। तो इट इज अप टू द बेसिकली द पर्सन्स हु आर फाइलिंग द रिटर्न्स, इट इज अप टू देम। हमें तो ये देखना कि हमने अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज कर दिया एज ए ऑडिटर या नहीं किया सर। Rest is upon the company secretary or the company management. Whosoever is filing the return, probably I am able to communicate my message. Right. Whosoever is filing the returns, they are responsible. We are not responsible. Once अगर हमारे डिजिटल सिग्नेचर वहां लग रहे हैं, सर्टिफाइड कर रहे हैं उस फॉर्म को, देन वी आर रिस्पॉन्सिबल, अदरवाइज वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो वो उसको डिजिटल फॉर्म में कम्युनिकेट करते हैं, उस क्वालिफिकेशन को नहीं करते हैं। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी कि हमने भाई मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन भी ले रखी है, और अगर उसने इंप्लीमेंट किया है, किस हद तक किया है, नहीं किया है। टेम्परिंग की जो बात कर रहे हैं, टेम्परिंग एम्परिंग में जब बात करते हैं तो टेम्परिंग के लिए जरूर राजेश भाई ने जो क्वेश्चन किया कि अगर कोई टेम्परिंग का स्कोप दिखता है तो वो जो नॉर्मली ऐसे SAP और ERP में आपको ज्यादा दिखेगा, स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा ऐसी टेम्परिंग बात। अगर कहीं बिल्कुल आपको मिलता ऑन द फेस ऑफ इट टेम्परिंग है तो यू हैव टू राइट इट, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो राजेश भाई, ऑडिट ट्रेल से रिलेटेड अगर किसी की कोई क्वेरी है, सभी को इनवाइट कर दो एक बार, फिर मैं इस मैटर को यहाँ पे एंड करके आगे। उसमें मैंने ये बता दिया अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन कि एक जगह नहीं आएगा ये क्लॉज, 3 क्लॉजेज इफेक्ट होंगे इससे आपकी। एक होगी यहाँ पे आप लिखते हो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन मेंटेन्ड बाय द कंपनी, वहां पर लिखेंगे एक्सेप्ट द मैटर्स एज स्टेटेड इन पैरा नंबर सच। एक जगह पैराग्राफ में आपका 11, जब रूल 11G में रिपोर्ट करेंगे तो पूरी बात लिखेंगे, द कंपनी हैज नॉट इंप्लीमेंटेड और द कंपनी हैज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम सच एंड सच डेट, राइट, एंड इट हैज बीन नॉट बीन टेम्पर्ड ड्यूरिंग द ईयर। और एक और बात उसमें आती है कि क्या उसने रिक्वायर्ड पीरियड के लिए वो मेंटेन किया है, तो वो क्लॉज इस साल से एप्लीकेबल नहीं है, नेक्स्ट ईयर से। देखो आप ये देखो लिमिट देखो, अगले साल वो पूछ रहा है 8 साल बाद, जो 7 साल बाद ऑडिटर आएगा उससे पूछेगा 6 साल पहले का एडिट लॉग मेंटेन था क्या। मतलब यू सी द हाइट कि यू आर बेसिकली प्रेजेंट, यू आर द ऑडिटर्स फॉर द 1 ईयर एंड यू आर आस्किंग फॉर द रिपोर्ट्स फॉर द लास्ट 6 years और 7 और 8 years। 8 साल का आपको रिकॉर्ड रखना जरूरी है। तो ये क्लॉज नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल होगी, जो बात करता है कि उसने पूरे टाइम के लिए रख के मेंटेन किया 8 साल के लिए या नहीं किया, जिस जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिक्वायर्ड है 8 years के लिए। सो कुछ ऐसी चीजें हैं हुई है जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना भी यही है। आप ड्यूरिंग द ईयर तक की बात कर रहे हो, हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर दूसरा ऑडिटर आता है, अब वो पिछले साल का भी हिसाब जाके चेक करें कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर जिस टाइम के लिए मैनेजमेंट रखनी थी वो रखी, एडिट लॉग रखा नहीं रखा, किस तरह से किया क्या नहीं किया, तो वो एक चीज जरूर है। तो राजेश भाई अगर मतलब इसमें यही है कि किसी फ्रेंड्स ने क्या किया, केवल 11G को क्वालिफाई कर दिया, तो वो गलत है। केवल 11G वाले पॉइंट पे ही क्वालिफाई आपको नहीं करना, आपको 3 पॉइंट्स पे करना है। एक तो जहां प्रॉपर बुक्स ऑफ की बात करते हैं, अगर लिखना चाहें तो लिख लें, ये है 140 सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 क्लॉज B, जहां पर आप लिखते हैं वेदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द हैज बीन मेंटेन्ड बाय द कंपनी और नॉट, वहां लिखेंगे यस प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज बीन मेंटेन्ड एक्सेप्ट the matter stated in paragraph so and so in respect of the edit log or the audit trail।
राइट। एक पैराग्राफ, एक सेक्शन और है 143 सब सेक्शन 3 क्लॉज एच, जो कहता है कि पूरी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कोई क्वालिफिकेशन है तो आप वहां यहां पॉइंट आउट करें इस क्लॉज के अंदर। तो वहां भी हम उस पैराग्राफ का रेफरेंस देंगे कि वी वांट टू कि काइंडली रेफर और पैराग्राफ नंबर दिस एंड दिस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट ट्रेल। और तीसरा आपका जहां ऑडिट ट्रेल का है वहां तो आप पूरी स्टोरी जो 3-4 लाइन की है वो लिखेंगे। तो एक नहीं 3 क्लॉजेज इफेक्ट हो रही हैं आपकी अदर लीगल एंड रेगुलेटरी मैटर्स में, और हर कंपनी पे एप्लीकेबल है, स्मॉल कंपनी पे भी एप्लीकेबल है और फॉरेन कंपनी पे भी। किसी कंपनी को कोई एग्जाम्पशन ऑडिट ट्रेल से नहीं है, प्रोवाइडेड दे आर मेंटेनिंग देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। किसी ने एक क्वेश्चन, मैं खुद ही अपने आप से क्वेश्चन करता जा रहा हूं, किसी ने पूछा साहब एक्सेल सीट, तो एक्सेल सीट से अगर डायरेक्ट कोई आपका सॉफ्टवेयर का लिंक नहीं है तो ऑडिट सॉफ्टवेयर, एक्सेल सीट या स्प्रेड सीट इज नॉट द कंप्यूटर ऑडिट, सॉरी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट इज नॉट द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, राइट। हाँ, इसका मतलब यदि कोई हम एक्सेल में या वर्ड में या कोई भी सॉफ्टवेयर में कोई दूसरी चीज रख रहे हैं और उसका लिंक हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से, तो वो पार्ट हो गए, अदरवाइज नहीं है। लिंक ऐसा कि जो डायरेक्ट इंपोर्ट हो रहा है उसमें, यस 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 यस। ऑनलाइन या वो फिगर हम वहाँ यूज कर रहे हो। नहीं, फिगर तो यूज कर, देखो स्प्रेडशीट में आपने कोई चीज बनाई बाद में फिर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डाल दी, वो चीज अलग हो गई। बट एक है कि आपका जो बेसिकली आजकल ऐसे टूल्स आ गए कि वो पूरा पूरा आपका डेटा एक्सेल से सीधा सीधा इंपोर्ट होता रहता है अगर जी कंप्यूटर जी जी, बिल्कुल होता रहता है, जी अकाउंटिंग जी। सॉफ्टवेयर में। तो उस हम्म। वो वाला उन्होंने इंस्टीट्यूट ने भी कहा कि दैट विल बी ट्रीटेड एज द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अदरवाइज स्टैंड अलोन स्प्रेडशीट विल नॉट बी ट्रीटेड एज द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। और इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शन की बात है वही बात की बात कर रहे हैं। यूजर्स वगैरह अगर चेंज हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो यूजर्स आर नॉट बेसिकली द ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन की बात बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस का एडिट लॉग रखना है। सनी साहब भी साथ में है। सनी साहब उसमें उन्होंने स्पेसिफिक कहा कि आपको ट्रांजैक्शंस के लिए एडिट लॉग रखना है। किसी ने पूछा यूजर चेंज कर दिया कुछ और, तो दोज आर नॉट द बेसिकली ट्रांजैक्शंस, तो वो सब चीजें उसके अंदर कवर्ड नहीं है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल जी ट्रांजैक्शंस जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आ रही जी है जी जी उसके लिए जी पूरा जी। एडिट लॉग होना चाहिए। किस दिन वो ट्रांजैक्शन की गई, किस टाइम पे की गई, अगर मैं आपके यूजर्स डिफाइंड है किस यूजर ने की, ऑफ कोर्स अगर वो मॉडिफाई हुई तो किस डेट में हुई, किस टाइम हुई, उस टाइम स्टैम्प आ जाएगी, राइट। अगर डिलीट हुई वो भी आ जाएगी। किसी ने कहा डिलीट कर दी, हमने डिलीट की भी आ जाएगी, डोंट बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई वाउचर डिलीट कर दिया तो उसका भी लॉग बन जाएगा, मॉडिफाई कर सर, दिया तो उसका भी। ये एक सवाल आया है कनक अग्रवाल जी का जी कि क्या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिपोर्ट में भी इसको हमने मेंशन करना है। देखो, अगर जब जहां आईएफसी की बात आती है तो वहां बिल्कुल मेरा भी पर्सनली यही है सर कि जहां आईएफसी की रिपोर्टिंग मैंडेटरी है जिन कंपनीज पे, वहां पर एक वीकनेस है आपके सिस्टम की जो कि बेसिकली रेगुलेटर्स ने डाली है, जी, राइट। आएगी, इसका मतलब तो आएगा। उसमें उसमें वो क्वालिफिकेशन आनी चाहिए, इस सर उसमें सर इम्पैक्ट आएगा उसका सर। चलो सर, अपने मेन सब्जेक्ट की तरफ आए, सेकंड सब्जेक्ट की तरफ। सर प्लीज रिपीट द 3 क्लॉजेस दैट वेयर वी हैव टू मेंशन द नॉन ये कंप्लायंट। सुन लेंगे, रिपोर्टिंग सुन लेंगे ये। हाँ नहीं, हाँ नहीं, सॉरी, रेशमा जी ने, ऑडिटिंग। हाँ रेशमा जी yes, का एक क्वेश्चन है, तो हाँ उसमें बोलो मैं सर। मैं आपके साथ ये टेम्पलेट भी शेयर कर दूंगा राजेश भाई, विद द रिक्वेस्ट कि आप सभी लोगों को भेज दें। उनमें हमने क्या टेम्पलेट बना रखे हैं, 4 तरह से टेम्पलेट बनाए हैं। किसी में आईएफसी लगता है, किसी में नहीं लगता, किसी में कैश फ्लो लगता, किसी में नहीं लगता, किसी में कारो लगता, किसी में नहीं लगता। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि सबकी अलग अलग थ्रेश होल्ड्स हैं, राइट। तो मैंने टेम्पलेट बना दी उसी तरह से हर फॉर्मेट में। और उसका हमने जो हेडिंग फाइल का दिया वो उससे क्लियर है कि ये टेम्पलेट कहाँ लगेगा। बिट अगेन रिक्वेस्ट कि आप उसको टेम्पलेट को ढंग से पढ़ के ही करें। और जहां पर मैनुअल बुक्स मेंटेन हो रही हैं उसके लिए भी मैंने एक क्लॉज बनाई हुई है, और जहां आप क्लीन ओपिनियन देनी है उसके लिए भी, तो वो सारे मैं टेम्पलेट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, और विच यू कैन बेसिकली शेयर विद द मेंबर्स ऑल्सो। और ये अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, एट द एंड मैं ये कह रहा हूँ कि पहला पार्ट हमारा इफेक्ट नहीं हो रहा, सेकेंड पार्ट लीगल रेगुलेटरी मैटर्स में जो 3 क्लॉजेज हैं जो रेशमा जी ने क्वेश्चन पूछा, 143(3)(b) क्लॉज बी, उसके बाद क्लॉज एच, और उसके बाद क्लॉज जे, ये क्लॉजेज में इफेक्ट हो रही है। उन तीनों क्लॉजेज में आपकी क्वालिफिकेशन आएगी, और जो आपको टेम्पलेट हम लोग अभी शेयर करेंगे, सो वी हैव बेसिकली टेकन केयर ऑफ ऑल दीज क्लॉजेज इनटू दोज रिपोर्ट्स। एक कोई और क्वेश्चन अगर है तो। भरत अग्रवाल जी ने पूछा था कि पेनल्टी हैज टू बी पेड बाय द ऑडिटर्स फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। बिल्कुल बिग नो,
मैनेजमेंट ऑडिटर को क्यों देनी सर, और मैनेजमेंट देगा। और मैनेजमेंट, हाँ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी शुड विवेयर द मैनेजमेंट कि ये इस तरह की इम्प्लीमेंट। आप ये नहीं कि आपने रिप्रेजेंटेशन लेके रख ली, वो उससे पूछा, बोला कौन सी रिप्रेजेंटेशन, उसे तो पता ही नहीं कि हमने क्या साइन करा। बोले साहब मैं तो राजेश जी जो देते हैं हम सब साइन कर देते हैं, ये तो अगर हमें डाइवोर्स पेपर भी देंगे तो हम वो भी साइन कर देंगे, हम तो देखेंगे भी नहीं इन्होंने क्या दिया है। तो इतना फेथ है प्रोफेशन के ऊपर लोगों को, तो वो चीज है। बट मेरी अगेन एक रिक्वेस्ट सभी से यही है कि प्लीज इस क्लॉज में कोई भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि देखो कौन सा क्लाइंट कहाँ किस तरह से किस ट्रैप में आ जाता है आज के टाइम में कुछ नहीं मालूम है। कुछ नहीं हमें पता लगता सर, है कि कुछ वो नहीं पता। छोटी कंपनी है, वो स्मॉल कंपनी है, उसमें कोई रिस्क नहीं है। पता लगा उसमें जीएसटी का एक फेक बिल बुक हो गया किसी तरह से, इंटेंशनली नहीं अनइंटेंशनली है। वो कहाँ से किस तरह से ट्रांजैक्शन घूम के आ रही है, किसमें कौन मनी लॉन्ड्रिंग में आ रहा, कौन ब्लैक मनी में आ रहा, कौन बेनामी में आ रहा, कौन किस में आ रहा, किसी और के थ्रू आ रहा। आपका क्लाइंट बिल्कुल पाक एंड साफ है, लेकिन वो जिससे ट्रांजैक्शन कर रहा है वो सारे पाक साफ थोड़ी ना है। आप ही मान के चलो ना, तो पूरी रिस्क है। और उस समय कोई इस तरह का क्वेश्चन हो जाता है कि ऑडिटर्स जो पॉजिटिव एसर्शन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दे रहे हैं, काइंडली मेरी हैंड फोल्डेड आपसे रिक्वेस्ट है कि अब ऑडिट रिपोर्ट्स वो ऑडिट रिपोर्ट नहीं रही। आज हर अथॉरिटी उस ऑडिट रिपोर्ट को वर्ड बाई वर्ड पढ़ती है और वर्ड बाई वर्ड उसकी एडियरेंस चाहती है। और जब आप बहुत सारी पॉजिटिव एसर्शंस ऑडिट रिपोर्ट में लिखते हैं तो काइंडली रीड इट वर्ड बाई वर्ड कि क्या क्या इंप्लीमेंटेशन वो मांग रही है हमसे। जब हम लिखते हैं कि कंपनी ने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं तो वी शुड एंश्योर कि इम्प्लीमेंट उसने AS 15 के हिसाब से एक्चुअली की वैल्यूएशन कराई है या नहीं कराई है, उसने प्रोविजनिंग की है या नहीं की है। राजेश भाई, तो पॉजिटिव एसर्शन देना बहुत आसान है, लेकिन अगर मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है कि कम से कम एक बार ऑडिटर रिपोर्ट अपनी जरूर पढ़े। मतलब उसका फॉर्मेट, आप उसको फॉर्मेट मत माने, उसको टेम्पलेट है लेकिन टेम्पलेट मत माने। आप ये देखें कि उसके अंदर आप क्या लिख के दे रहे हैं हर एक को, क्योंकि ऑडिटर्स रिपोर्ट एक ऐसा है जो एड्रेस तो किया जाता है मेंबर्स को, बट इट इज वाइडली यूज्ड, वाइडली यूज्ड। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये हमने ऑडिटर्स केवल केवल मेंबर्स हमें स्यू कर सकता है, एनी अथॉरिटी कैन स्यू अस, क्योंकि बेसिकली दीज आर दिस जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर मेंट फॉर द वाइड रेंज ऑफ यूजर्स। तो वहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंबर्स तक लिमिटेड नहीं है। बट हाँ ऑफ कोर्स अगर आप सर्टिफिकेट कोई दे रहे हैं, इंस्टीट्यूट भी कहती है सर्टिफिकेट में एड्रेस ही मस्ट बी देयर, और उस एड्रेस ही में नीचे एक आपका डिस्क्लेमर भी आता है कि दिस सर्टिफिकेट शुड बी यूज्ड ओनली बाय द इंटेंडेड रेसिपिएंट एंड वी वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीबॉडी एल्स। वहां हम लिखते हैं डिस्क्लेमर, वहां पर हम अपने आप को बचा सकते हैं। बट ऑडिट रिपोर्ट में अगर कोई चीज इस तरह की आती है तो वी कैन नॉट। सो ऑडिट ट्रेल से रिलेटेड किसी का किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन है, मैंने अगेन कहा जिस कंपनी में डोरमेंट कंपनी है 5-10 10-20 50 ट्रांजेक्शन है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, यू मेंटेन इट। मैं मैनुअली। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए हम बहुत ज्यादा खुल के नहीं बोल रहे हैं राजेश भाई। आप मैनुअली कर, आप कहो आप मैनुअली मेंटेन कर रहे हैं 10-20 50 ट्रांजेक्शन के लिए एंड यू आर आउट ऑफ द बार, राइट। बट अगर उससे ज्यादा बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन है, स्मॉल कंपनी भी है, तो आपको यू हैव टू क्वालिफाई इट। और अगर 80-90% ऑडिटर्स क्वालिफाई करेंगे तो कुछ मुझे ऐसा लगता है कुछ होने वाला नहीं है। जब और अगर 2-4% करेंगे तो भाई चिट्ठी कोई भी आ सकती है, और उसके लिए मैनेज वी शुड बिवेयर द मैनेजमेंट कि आप उसके लिए तैयार रहें और अगले साल से इंप्लीमेंट कर दें। और मेरे ख्याल से सच काइंड ऑफ नॉन कंप्लायंसेस विल बी टेकन लीनियंटली बाय द अथॉरिटीज आल्सो। दिस इज माय पर्सनल व्यू, क्योंकि इससे किसी का कोई नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। और अगर बड़ी कंपनियों में वो चीज इंप्लीमेंट नहीं हो रही तो हाँ ऑफ कोर्स वहां पर आपके स्टेक्स ज्यादा होते हैं, वहां कुछ भी हो सकता है। सो प्रोबली आज बेसिकली जिस तरह से हमें टॉपिक दिया गया था तो वो 2 पार्ट में है। वैसे तो वो इम्बाइब्ड है, जैसे राधा और कृष्ण, कृष्ण और राधा है, सीता और राम और सीता, उनको अलग नहीं किया जा सकता। दोनों टॉपिक इंटरलिंक्ड है, इंटरवोवन है, इंटरकनेक्टेड है। बट फिर भी एक क्वेश्चन बार बार लोगों से आ रहा था कि पहले ऑडिट ट्रेल का, हालांकि ऑडिट ट्रेल के लिए आज हम 11 सितंबर में बैठे हैं, काफी बैलेंस शीटें साइन हो चुकी हैं। और किसी ने कहा कि अगर हमने क्लॉज उसमें इस तरह से नहीं डाली है, तो देखो जो चीज हाथ से निकल चुकी है उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके अभी पास में है, आपके पोजेशन में है और कई थर्ड पार्टी को आपने नहीं दिए, तो ऑफ कोर्स वी कैन रिवाइज इट। और अगर ऑफिशियली भी आप रिवाइज करना चाहें तो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो ऑलवेज अवेलेबल, कोई ऐसी इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं लगती। तो ऑडिट ट्रेल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन किसी का है। अब कोई नहीं है सर, आप तो सब लोग उसके वेट कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट की
सेकंड पार्ट की। ठीक है सर, तो सेकंड पार्ट में आपने एक बड़ा क्या टॉपिक दिया था सर, मैं तो भूल भी गया। परफॉर्मा ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट फॉर नॉन कॉर्पोरेट एसएससी। हाँ, प्रोफॉर्मा ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट फॉर नॉन कॉर्पोरेट एसएससी। तो ये टॉपिक देखा जाए तो राजेश भाई का बनाया हुआ है, राजेश भाई को किसी ने सजेस्ट किया मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने जो भी बनाया वो बहुत खूबसूरत बन गया। सर लोग मेंबर बहुत परेशान है, और व्हाट्सएप पे तो इतना ज्ञान बढ़ रहा है कि जी साहब एप्लीकेबल है नहीं है, लोगों में बहुत कंफ्यूजन है। तो मैंने कहा सर आप ही एक अथॉरिटी हैं जो कि इस नहीं कंफ्यूजन को नहीं दूर कर सकती हैं सर। नहीं नहीं सर, मैं तो वो कहते हैं बहुत सर बहुत छोटा सा एक कण हूँ, और इट इज द ब्लेसिंग्स ऑफ माय गुरु सी अमरजीत चोपड़ा जी हु पुट द फायर इनटू मी। नहीं तो ये एक ऐसा बोगस या सब्जेक्ट था कि इस पे बुलाए तो लोग आते नहीं थे प्रोग्राम्स में सर, राइट। लेकिन किसी ना किसी तरह हमारे गुरुजी ने इसमें, वो कहते हैं ना, हल्की सी सुलग रही थी उसको फूंक फूंक के एकदम से हाँ, फायर बना नो दिया। डाउट। और वो आज से 20 साल पहले भी यही कहते थे कि देखो अगर प्रोफेशन को रेलिवेंट रखना है तो वी विल हैव टू परफॉर्म। और आज हम कहीं ना कहीं उसी स्टेज पे आके खड़े हो गए हैं सर, कि आज भी यही बात है कि अगर प्रोफेशन को रेलिवेंट रखना है तो वी विल हैव टू परफॉर्म। ऑडिटर्स की जो 20 साल पहले रेपुटेशन थी, एटलीस्ट आज तो नहीं है उस सोसाइटी में। वी आर ऑल लुकिंग एट इट एंड प्रोबेबली वी आर रिस्पॉन्सिबल। और जब हम बी की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं अपने आप को आगे खड़ा पाता हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी दूसरे की तरफ कह रहा हूँ। तो ये हमारा इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है कि हम किस तरह से ड्यूटीज को डिस्चार्ज करें, कितना एक बैलेंसिंग बहुत जरूरी है लाइफ में सर। आप सारा का सारा केवल क्लाइंट की भलाई सोचेंगे कि पेनल्टी केवल क्लाइंट पे लग जाएगी, और आप सोचेंगे हमसे लगेगी तो हमारे ऊपर लगने दो, कोई बात नहीं, हम क्लाइंट को नहीं लगनी चाहिए। तो वो अप्रोच बहुत फैटल होती जा रही है डे बाई डे। तो वी हैव टू मेक द बैलेंस। अब जो आपने सर टॉपिक है कि प्रोफॉर्मा फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट, हम इसको थोड़ा और इम्प्रोवाइज करते हैं विथ योर परमिशन। प्रोफॉर्मा फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द नॉन कॉर्पोरेट। गुड सर, गुड, ठीक है सर। राइट, तो इसमें एक से अगेन दो टॉपिक निकल गए, सिबलिंग है। तो अगर मैनेजमेंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है तो इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस नोट इशू किया है, गाइडेंस नोट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नॉन कॉर्पोरेट। उसका टॉपिक का नाम अगर एग्जैक्ट देखेंगे, गाइडेंस नोट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। दिखा दो सर, इसको सब लोग देख लेंगे, दिखा दो सर। ये है सर। गुड सर, गुड। तो ये रिवाइज गाइडेंस नोट आया है, पहले इंप्लीमेंट इसका वो आया था, टेक्निकल गाइड आई थी। सो दिस गाइडेंस नोट इज नथिंग बट द प्रोटोटाइप ऑफ शेड्यूल थर्ड बैलेंस शीट इन ए नटसेल। जैसे हम शेड्यूल थर्ड की कंपनीज के अंदर बैलेंस शीट बनाते हैं, जिस तरह से उसमें कैटेगराइजेशन करते हैं, केवल इक्विटी की जगह आपकी कैपिटल आ जाएगी अगर प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगी अगर पार्टनर है, कोई और फंड है तो वो आ जाएंगे। अदरवाइज प्रोटोटाइप है, सारी एसेट्स लाइबिलिटीज को आपने करंट नॉन करंट में डिवाइड करना है, उसी तरह से प्रेजेंटेशन देनी है, और प्रीवियस ईयर की फिगर साथ में देनी है। तो और ये गाइडेंस नोट, it is applicable for the accounting periods commencing on or after 1st April 2024, meaning thereby it is applicable, it is basically mandatory for the financial year 24-25, not for the financial year 23-24। 23-24 के लिए गाइडेंस था, इट वाज merely the guidance of a committee। आप उसको कर भी सकते थे, आप नहीं भी कर सकते थे, लेकिन अब जिस फॉर्मेट में ये अब आया है 24-25 से, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि ये मैंडेटरी है। हालांकि इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन रहती है, बट सेफर साइड हम ये लेके चलते हैं कि भाई 24-25 से, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इसको की अथॉरिटी से इशू हुआ है, तो इट इज मैंडेटरी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। हालांकि एक बात मैं कह दूं अपने फ्रेंड्स के साथ कि आई डू नॉट इंडोर्स द बेसिकली फॉर्मेटिंग इन विच इट हैज बीन गिवन, क्योंकि नॉन कॉर्पोरेट के लिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इस फैशन में नहीं थी, ना किसी लॉ ने मांगी थी, और ना प्रीवियस ईयर की फिगर्स हर आइटम की देनी जरूरी थी। बट चूंकि इंस्टीट्यूट ने दे दिया है, हमारे अल्मा मैटर ने दे दिया, हमारी मदर इंस्टीट्यूट है, तो भैया वी विल हैव टू फॉलो। 23-24 के लिए अगेन मैं कहूंगा रिकमेंडेटरी है, आप इंप्लीमेंट करना चाहें करें, आप नहीं करना चाहें नहीं करें। इट इज अप टू द मेंबर्स कि वो उसको इम्प्लीमेंट 23-24 में करते हैं। 24-25 से तो हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगी वो वाली खुली। अगर
कोई बहुत ही बोल्ड होके ऑप्शन वो लेना चाहेगा तो वन हैज टू फेस द, वन कैन हैव द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट ऑल्सो, बट डिफेंडेबल केस तब भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। क्योंकि एक मैं बहुत बड़ी मेजर चीज, सैनी साहब भी साथ में है और राजेश भाई हैं, बहुत मेजर चीज एक साथ में आप लोगों को डिस्कस करना चाहता हूँ। कई बार मैं चाहता हूँ कि ये इंस्टीट्यूट लेवल पे भी एस्केलेट हो, मैंने खुद भी एस्केलेट करने की कोशिश की, बट आई फाइंड माई सेल्फ एलोन। मैंने ये कहा कि जो नॉन कॉर्पोरेट में सैनी साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, दे शुड नॉट बी ट्रीटेड एज जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फोकस होते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी के लिए। एम आई राइट? नॉन कॉर्पोरेट के लिए अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही आती है कि वो इनकम टैक्स की रिटर्न के साथ पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाता है अगर ऑडिटेड केस है, और नॉन ऑडिटेड केस अगर नॉन ऑडिटेड है 1 करोड़ से नहीं प्रिजम्पटिव में जा रहा तो वो भी पूरा नहीं जाता। फर्क क्या है सर जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? लेट मी मेक इट वेरी क्लियर सर, इफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, then basically the management has to make the compliance of all accounting standards. All accounting standards are applicable issued by ICI to the extent जिस तरह से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 4 कैटेगरी में नॉन कॉर्पोरेट को डिवाइड किया। कॉर्पोरेट को 2 कैटेगरी में, एसएमसी और नॉन एसएमसी, स्मॉल एंड मीडियम कंपनी और नॉन स्मॉल मीडियम कंपनी। लेकिन नॉन कॉर्पोरेट के लिए इंस्टीट्यूट ने 4 में डिवाइड कर दिया। चौथा कैटेगरी में वो है जिसका ऑडिट ही नहीं होता। अब ये बताओ जिसका ऑडिट ही नहीं होता वो बनाए ना बनाए कौन देख रहा है इसको? लेकिन जिसपे एश्योरेंस किसी तरह की दी जा रही है उसमें उन्होंने यही कहा कि उस एश्योरेंस को में इसमें जनरल पर्पज माना जाए। अब मैं अपने मेंबर्स के साथ जो भी अभी 69 लोग कनेक्टेड है उनके साथ एक बात शेयर करता हूँ, इंट्रोस्पेक्शन का पॉइंट दे रहा हूँ सर, और वो फॉर्मेट से भी जुड़ा हुआ है कि क्या नॉन कॉर्पोरेट एसएससीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सैनी साहब का व्यू भी चाहूंगा इसमें, अनम्यूट कर लें सर, मुझे लगेगा आप मुझे सुन रहे हैं, वैसे तो सुन रहे हैं लेकिन हम भी आपको सुन सकें। सैनी साहब, नॉन कॉर्पोरेट के केस में कितने लोग ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉन कॉर्पोरेट फॉलो करते हैं? सबसे बड़ा I would like to mention here हाँ that this issue of non-corporate assessees accounts, I think it came to our knowledge 2 and 3 years back. यस And to my knowledge, we are following it, and most of our friends, even to the extent of trust, यस people have started making accounts as per the guidance note. यस Now, this particular thing, I was not aware that it is now mandatory from 24-25. But most of the people, they are making earlier, that particularly I have seen. And when you make according to the guidance note as per the institute, then all standards have to be followed. बिल्कुल। अब मैं सैनिक साहब के साथ 1 to 1 बात करना चाहूंगा सर। डेप्रिसिएशन मेथड नॉन कॉर्पोरेट के एसएससीज के केस में कौन सा लोग फॉलो करते हैं? ब्लॉक सिस्टम या एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10? सर वो तो इनकम टैक्स वाला ही फॉलो कर रहे हैं, राइट? हाँ इनकम टैक्स वाला फॉलो कर रहे हैं ना सर? हाँ हाँ AS 10 की वायलेशन हो गई, राइट? इसके बाद एक्चुअली की वैल्यूएशन कितने लोग कराते हैं नॉन कॉर्पोरेट में? 0। AS 15 की वायलेशन हो गई, बिल्कुल हो गई। इन केस ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमारा AS 7 कहता है कि हम कंप्लीशन मेथड से भी चल सकते हैं, ICDS कहता नो कंप्लीशन मेथड से नहीं चल सकते, अगर 90 डेज से ज्यादा का है तो आपको परसेंटेज कंप्लीशन मेथड लेना पड़ेगा। इसके बाद एक्सपेक्टेड लॉसेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है सर? सनी साहब को मेरे सामने हम बात करेंगे, अब आप सब लोग सुनेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन। सनी साहब, एक्सपेक्टेड लॉसेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है एक्सपेक्टेड लॉसेस हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर इटसेल्फ इन केस ऑफ परसेंटेज कंप्लीशन मेथड ऑफ AS 7, जबकि इनकम टैक्स क्या कहता है? नो expected losses has to be spread over the number of years in which revenue is recognized, right sir?
मैं ये बड़े बड़े डिफरेंसेस आपको बता रहा हूं कि जहां पर इनकम टैक्स के प्रोविजंस को चाणक्य कह रहे हैं और हम इनकम टैक्स के प्रोविजन फॉलो कर रहे हैं। आई एम सनी साहब, अगला क्वेश्चन, डेफर्ड टैक्स एसेट्स कितने नॉन कॉर्पोरेट बना रहे हैं? कोई नहीं बना रहा, तो AS22 कौन फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा ना सर। सो देयर आर सो, मतलब ये तो मैंने आपको कुछ 3-4 चीजें बताई। नंबर ऑफ सच काइंड ऑफ लिस्ट इज देयर वेयर द नॉन कॉर्पोरेट्स आर नॉट फॉलोइंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि पीपल आर जस्ट फॉलोइंग द फॉर्मेट्स एंड नॉट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसीलिए राजेश भाई बहुत इनका विजनरी है, इन्होंने इसीलिए लिखा था प्रोफॉर्मा, शायद प्रोफॉर्मा। मैं बता रहा हूं सर, हम अपने हाथों में हथकड़ी लगवा रहे हैं सर। वी आर सुसाइडिंग अटेम्प्ट, हमारे ये अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट है सुसाइडल, कि वी आर गिविंग द पॉजिटिव assertions that the SSC has followed the accounting standards while they are not following it, and by virtue of the provisions of Income Tax Act they are not required to follow it. पूछो आप कैसे? आप जब ICDS लेके आए, इनकम कंपटीशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, तो आपने एक पैरेलल इकोनॉमी बना दी सर, पैरेलल स्टैंडर्ड्स क्रिएट कर दिए आपने, एंड यू टुक द बेसिकली नंबर ऑफ मेजर डेविएशंस फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इटसेल्फ। और अब आप क्या कहते हो सर? आप कहते हो कि आप अपनी बुक्स तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मेंटेन करो, लेकिन कंप्यूटेशन ICDS के हिसाब से बनाओ। हाउ इट इज पॉसिबल सर? Unless we maintain 2 sets of books of accounts, it is not humanly possible to make every kind of adjustment through the computation of income. नहीं हो सकती सर, क्योंकि it will go in number of years. Yes, it will एक go in साल नहीं, number of number years. of years में जाएगी, number of years में जाएगी सर। आपकी रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन की पॉलिसी डिफरेंट है ICDS के अंदर। जी। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक डिफरेंट है। बहुत बोरोइंग कॉस्ट कैसे हाँ। डिफरेंट है? जो राजेश भाई ने कहा, वो कहता है कि आप कैपिटलाइजेशन, सनी साहब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि योर कैपिटलाइजेशन विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम द डेट इट इज रेडी टू यूज। यही वर्ड है ना Yes, सर, रेडी टू यूज। yes. इनकम टैक्स कहता है कि नो, द कैपिटलाइजेशन विल गो until the date of put to use. Put to use. So there are so many deviations, major deviations, material deviations, which makes your financial statement different. और ब्लॉक ऑफ एसेट्स का तो मैंने आपको सबसे बड़ा एग्जांपल दिया। Sir, one small point. Sir, There are a few non-corporates where we are not, as a matter of practice, accounting 700 का ऑडिट रिपोर्ट नहीं जा रहा है, ओनली टैक्स ऑडिट हो रहा है जी। एंड देयर इफ दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिपोर्टिंग वहां कहाँ होती है सर? जब आप सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी उसकी लिखते होंगे, नॉन कॉर्पोरेट के में लिखते हैं या नहीं लिखते सर? यस, वहां लिख देते हो आप, The financial statements have been prepared under historical cost convention and as per the accounting standard issued by ICI. Positive assertions है सर। सर एक बात और बताइए, क्या ये नॉन कॉर्पोरेट पे, जहां तक मेरे को याद है, नफरा नहीं लगता, तो या ये जो नफरा या DC आ सकता है देखो नॉन कॉर्पोरेट? देखो नफरा DC के डोमेन में तो बिल्कुल है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट पॉइंट यही है ना सर राजेश भाई, कि जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहे हैं तो व्हाई वी आर गिविंग द पॉजिटिव असर्शन? इसको मैं इस तरह से कहूं कि मैं इनकम टैक्स के अंदर अंडर सेक्शन 44 AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ऑडिट करा रहा हूं सर। SSC की बात करूं, वो कहता मैं आपके ICI के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बुक्स नहीं रख सकता सर। अब आप क्या करोगे? कैन यू डिनाई unless you follow the accounting standards we will not audit? Ethically as well as legally you should not deny, क्योंकि वो कह रहा है मैं आपके इनकम टैक्स के प्रोविजंस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे बना रहा हूं, ICDS को मैं फॉलो कर रहा हूं, because we don't want to maintain 2 sets of books of accounts. We are not able, even we don't have such resources, और आप उसको कंपेल कर रहे हो। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। स्टैंडर्ड 805 अभी रिवाइज होके आया, उसमें उसने कहा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में सैनी साहब कि
कि जो टैक्स कंप्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दे कैन बी ट्रीटेड एज स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट पता नहीं, विथ ऑल माई सिंसियर एंड अटमोस्ट रिगार्ड टू माई इंस्टीट्यूट ने उस पैरा को डिलीट कर दिया, which could had saved our skin in the court of law. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये बात कह रहा है कि टैक्स कंप्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी ट्रीटेड एज स्पेशल पर्पज। अगर आपके जनरल पर्पज है तो आपको एएस फॉलो करने पड़ेंगे, और हमारे आईसीआई की गाइडेंस नोट में 44AB के गाइडेंस नोट में भी ये लिखा है कि जो 44AB के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे वो जनरल पर्पज होंगे, दे विल बी ट्रीटेड एज जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आप ये बताएं हम ब्लॉक एसेट्स में रखें या हम उस स्टैंडर्ड से चलें एएस 10 से, और फिर उसके डिफरेंसेस निकालते रहें। वो कहता है एसेट अगर सेल करें तो ब्लॉक में से लेस कर दें स्ट्रेट अवे। एएस कंपोनेंट अकाउंटिंग की बात कर रहा है सर 10। सनी साहब, आर यू विथ मी? वो कहता है कि अगर कोई बड़ी एसेट है तो उस कंपोनेंटाइजेशन पॉसिबल है तो वो करो उसका। एक एसेट में भी कंपोनेंटाइजेशन की कंपोनेंट वाइज आप डेप्रिसिएशन, क्योंकि अगर उसकी यूजफुल लाइफ डिफरेंट है, और एक तरफ आप कह रहे हो हम ब्लॉक ऑफ एसेट से सेल कम कर देते हैं क्योंकि इनकम टैक्स इसको परमिट करता है। तो अल्टीमेटली क्या करना है, मैं तो सर मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूं। ऑलवेज आई यूज टू राइट इन द, जहां पर नोट्स लिखते हैं कि दी एसएससी हैज बेसिकली प्रिपेयर्ड देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कीपिंग इन व्यू द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट रूल्स रेगुलेशंस व्हिच आर नॉट कंसिस्टेंट विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय आईसीआई, which are not consistent with the accounting standard issued by ICAI. So they have followed only the provisions of the Income Tax Act and ICDS. क्या करूं सर, मैं कैसे लिख के दे दूं वो AS15 फॉलो कर रहा है, वो डेफर्ड एक्सेस कितने नॉन कॉर्पोरेट में भी अच्छी लेवल 1 के भी नॉन कॉर्पोरेट होते हैं जिनकी अच्छी टर्नओवर है, कितने में कैश फ्लो बना रहे हो आप? यू टेल मी, एंड व्हाई यू शुड? जब कोई अथॉरिटी आपसे नहीं मान रही, डेफर्ड टैक्स आप नहीं बना रहे, आप सेगमेंट रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, आप इंपेयरमेंट की बात नहीं कर रहे। मैं अगर बात करूं सर आउटराइटली, आप पता लगा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी तक मेंशन नहीं करते कई बार। तो आप AS1 को फॉलो नहीं कर सकते, आप AS2 को, AS3 को आप लाइन लगा के चलो, AS29 तक आप कितने स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं? वो कहता मैं कंटेंजेंट लायबिलिटी का प्रोविजन अलाउ ही नहीं करूंगा आपको। इनकम टैक्स तो ये कहता कंटेंजेंट प्रोविजन फॉर कंटेंजेंट लायबिलिटी इज नॉट अलाउबल। हमारा ये स्टैंडर्ड कहता है कि अगर पॉसिबल कोई कंटेंजेंट लायबिलिटी बनती है और अगर उसमें कुछ है तो आपको प्रोविजनिंग करनी है। तो वो क्या रहा नॉन कॉर्पोरेट के केस में सर, अब तो हम फॉर्मेट भी लेके आ गए कि फॉलो AS नहीं हो रहे हैं। अगर कोई कह रहा है तो वो केवल अपने आप को शांत, बस अपने आप को कह रहा है। किसी ने कह दिया मैं तो ब्लॉक सिस्टम नहीं, मैं तो दोनों लगाता हूं। भैया चलो आपने एक AS फॉलो भी कर लिया, बाकी AS की क्या बात करोगे आप? AS15 की क्या बात करोगे? बोरोइंग कॉस्ट की क्या बात करोगे? इंपेयरमेंट की क्या बात करोगे? AS2 की क्या बात करोगे? और बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट है ICDS आने के बाद कि आपने कंप्यूटेशन स्टैंडर्ड्स कह के अकाउंटिंग छेड़ दी सर। तो बात यही है सर, मेरी सभी मेंबर से, सभी फ्रेंड से यही रिक्वेस्ट है कि जहां तक प्रोफॉर्मा वाली बात है तो मैंने बता दिया 24-25 से मैंडेटरी, 23-24 से आपका रिकमेंडेटरी था और आप बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी एक हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि कम से कम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट सामने रख के एक बार टिक कर लें कि आपका कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉन कॉर्पोरेट फॉलो नहीं कर रहा है और कौन सा कर रहा है। टू माई माइंड मोस्ट ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन नॉट बी फॉलोड। मैं नोइंगली वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि जब आप एक एक ट्रांजेक्शन को, कि आप बेसिकली आपने रिकॉग्निशन पॉलिसी चेंज कर दी इनकम टैक्स के अंदर, आपने मेजरमेंट की पॉलिसी चेंज कर दी, आप क्या बात कर रहे हो आप सर? एम आई राइट कि Yes, आप इनकम टैक्स के आपके रूल्स अलग हैं बिल्कुल। आप लाए तो बेसिकली वो थे टैक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से, वो तो इंस्टीट्यूट ने करवा दिया इसका नाम चेंज। नहीं तो पहले जो सबसे पहले जो इसका सेट आया था उसका नाम था टैक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देन द इंस्टीट्यूट अप्रोच कि भैया इससे इंटरनेशनली बड़ी बदनामी हो जाएगी कि टैक्स के आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। तो उसका नाम चेंज कर दिया गया टैक्स कंप्यूटेशन एंड क्या ICDS, इनकम कंप्यूटेशन, इनकम कंप्यूटेशन एंड इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, ठीक है।
जबकि उसमें इनकम कंप्यूटेशन का कोई स्टैंडर्ड नहीं है सर, उसमें अकाउंटिंग का है। इनकम कंप्यूटेशन का स्टैंडर्ड कोई होगा क्या, आप बताओ? वो तो प्रोविजन से चलेगा। डिस्क्लोजर का कौन सा स्टैंडर्ड है उसमें? वो तो प्रोविजन से चलेगा। आपने पूरी अकाउंटिंग छेड़ दी, उसके बाद आप कह रहे हो कि आप कंपटीशन में चेंजेस कर लो। मैंने ये बात कई बार आईसीआई में भी मुझे रखने का मौका मिला, एंड आई एम थैंकफुल टू हरजिंदर सिंह जी, उस समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में थे, उन्होंने अप्रिशिएट किया था इस चीज को कि पैरेलली विदाउट हैविंग द टू सेट्स ऑफ बुक्स अकाउंट्स इट कैन नॉट बी। नहीं कर सकते सर, आप ईआरपी में तब भी नहीं कर सकते सर इतनी एडजस्टमेंट। So whether set of two books are allowed under any act, sir? नहीं, टू सेट्स अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें तो कुछ हद तक हम उसमें कर ही रहे ना, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट हम उसमें ऊपर नीचे करते ही है, कैश फ्लो हम बनाते ही हैं। यहाँ पर नहीं देना पड़ा, इनकम टैक्स को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं, टू सेट ऑफ बुक्स अलाउड है? बिल्कुल नहीं है सर। वो तो कह रहा है कि आप कंपटीशन में करो, दो मिल गई तो और मुश्किल सर, एक नहीं मिलती तो मुश्किल रहती है, दो मिल गई तो और ज्यादा मुश्किल है। तो हाँ। मेरी बेस हैंड फोल्डेड सर रिक्वेस्ट यही है कि कोई भी आप पॉजिटिव असर्शन दे रहे हैं, आप कह रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं, तो पहले देख लें बस। और जो अब बात आते हैं इसकी सेकंड लिंक पे, प्रोफॉर्मा ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट फॉर नॉन कॉर्पोरेट एसएससी। आईसीआई के गाइडेंस नोट में ये दिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड ऑन 700 को आप इंपोर्ट मतलब करके दो पैराग्राफ कि ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और ऑडिट एसएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको आप उसमें डालें। लेकिन अगर उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आप पॉजिटिव असर्शन दे रहे हैं तो अगेन देख लें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे या नहीं हो रहे। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी नॉन कॉर्पोरेट्स आर नॉट फॉलोइंग, और कहीं ना कहीं हम लोगों के पास भी देखो रिसोर्सेज के भी लिमिटेशंस हैं कि हम इतनी सारी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हर एसएससी के लिए, जिनके पास अपने प्रॉपर अकाउंट्स डिपार्टमेंट नहीं है। हमें 44 एवी का ऑडिट करने का मैंडेट मिला है और हम पता नहीं कौन सी दुनिया में उसको लेके जा रहे हैं। अभी एक बार इनकम टैक्स की सप्लाई से तो उसकी टर्नओवर मैच नहीं करा पा रहे हैं इनकम टैक्स की, क्योंकि वो सप्लाई की बात करता है, वो टर्नओवर की बात करता है, AS9 रेवेन्यू की बात करता है। तो इनके अपने टॉप लाइन का तो रिकंसिलिएशन प्रॉपर हो नहीं पा रहा। और अगर आप इन सब चीजों में बोरोइंग कॉस्ट में और बहुत सारी चीजों में जब मेजरमेंट में घुसेंगे ना सर, पॉसिबल नहीं है सर। बट अगर फिर भी मैं यही कहूंगा कि देखो हमारी बात गोपाल जी की किसी ने नहीं माननी, वैसे वैसे बड़े वाले गोपाल जी की भी कौन मानता है? क्यों राजेश भाई? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर कोई चीज आप लिख रहे हो सर तो प्लीज बी वेयर, और आप क्लियर लिखो कि, और मैं आपको अगर चाहें तो लैंग्वेज भी मैं शेयर कर दूंगा, बट लेकिन एट योर ऑन रिस्क, क्योंकि मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हूं मेंटली कि अगर मैं लिख रहा हूं कि भैया एसएससी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस बनाए हैं, दे हैव नॉट फॉलोड द बेसिकली some provisions which are in they have not followed the accounting standard in toto, और बिकॉज द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स। हमने इसमें क्या लिखा था राजेश भाई, अब जब बात दिल की हो रही तो मन आ जाती है जुबान पे। हमने इसमें लिखा था कि द प्रोविजंस ऑफ बेसिकली द नॉर्म्स ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो चोपड़ा जी ने कहा यार इतना तो मत करो, इसको रिवर्स कर दो। तो मैंने उसको रिवर्स कर दिया सैनी साहब। अब मैं लिखता हूं कि द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट which are inconsistent with the accounting standards have not been followed। तो थोड़ा सा देखो है, बट ठीक है, हमने अपना मदर इंस्टीट्यूट को कहीं ना कहीं सेव किया कि भाई हम ये कह रहे हैं कि आपके प्रोविजंस हमारे इससे इंकंसिस्टेंट है। ऑफ कोर्स है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, वो टैक्स डोमेन के नहीं है कोई। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रोबली राजेश भाई मैंने जवाब ये दे दिया कि प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का और प्रोफॉर्मा ऑडिटर रिपोर्ट का। ऑडिटर रिपोर्ट का कोई भी आप डिस्क्लेमर 3CA के क्लॉज 3 में डाल रहे हैं, 3CB में 5 में डाल रहे हैं, प्लीज रीड इट। टेम्पलेट की तरह यूज मत करें। अगर आप दे रहे हैं कि AS फॉलो हो रहे हैं तो AS फॉलो आप करवाएं, अगर नहीं कराते हैं तो उसमें आप क्लियर लिखें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, या कोई और इस तरह की चीज आप अगर लिख रहे हैं। क्योंकि अगर आप उसको जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दे रहे हैं तो वो जनरल पर्पज है। अगर आप कहते हैं कि एसएससी ने स्पेशल पर्पज बनाए हैं तो एसएससी ने स्पेशल पर्पज बनाए हैं साहब। 44 AV का हम ऑडिट कर रहे हैं, वी आर नॉट ऑडिटिंग बियॉन्ड दैट। सो विद दिस राजेश भाई, let's take the questions and conclude the session.
क्योंकि सभी को तो बहुत बहुत दो काम है। क्वेश्चन लेकिन आए हैं एक सर। एक बात मैं और बता दूं कि देखो ये सब तो चलता रहता है जिंदगी में। एक मैं ऐसे ही पढ़ रहा था क्योंकि मौसम ऐसा है, तो रामचरितमानस में भी प्रॉफिट एंड लॉस है। आपने कहा था कुछ बात जरूर कर दें, तो सैनी साहब एक बार रामचरितमानस में मुझे प्रॉफिट एंड लॉस मिला, वो मैं शेयर सबके साथ आप लोगों के साथ करने में मुझे अच्छा लगता है कि भाई सबसे बड़ा गेन क्या है और सबसे बड़ा लॉस क्या है। भाई प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब विच इज द बिगेस्ट गेन एंड विच इज द बिगेस्ट लॉस। तो बिगेस्ट गेन है, बताएंगे सर क्या राजेश भाई, बिगेस्ट लॉस और बिगेस्ट गेन? नहीं नहीं, आज तो मैं सुनूंगा सर, बताऊंगा नहीं, सुनूंगा। तो लाइफ का है सर कि बाबा ने लिखा है, तुलसी बाबा ने, कि लाभ की किछु हरि भगति समाना, लाभ की किछु हरि भगति समाना, जय गावई सुत संत पुराणा। कि इसके मुकाबले कोई लाभ नहीं है भक्ति के अलावा भगवान की, है। और हमें प्रेमानंद महाराज जी भी बार बार ये कहते हैं, नाम नाम जप, नाम जप, नाम जप, है क्यों? राधा 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 भा- राधा राधा। हाँ, भाव को भाव अनख आलस हूँ, और राम नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, यही कहते हो। तो वही उन्होंने लिखा बाबा ने। और फिर हमने जब पढ़ा ये वाली लाइन सैनी साहब, तो मुझे लगा हानि भी आनी चाहिए कहीं। तो लिखा, अगली लाइन में लिखा है, हानि की जग ये जग यही सम किछु भाई, भजई न राम नर तनु पाई। क्या आप, तो एक और रिक्वेस्ट मेरी अपने सभी फ्रेंड्स के साथ है कि थोड़ा सा अ, अपना नाम बढ़ाएं, जिससे, और वही सपोर्ट करेगा इस प्रोफेशन में, बिलीव मी। जिस तरह से चीजें आ रही है ना, केवल नाम सपोर्ट करेगा, कोई नहीं करेगा, ना गोपाल जी करेंगे, ना कोई आईसीआई करेगी। नाम अपने आप सपोर्ट करेगा, आपको अपने आप रास्ता मिलता चला जाएगा। एंड यू विल हैव द स्ट्रेंथ कि आप जो चैलेंजेस ये आ रहे हैं उनको फेस कर सकें। सो राजेश भाई, अप टू ओवर टू यू फॉर क्वेश्चंस। सर मैं आपके उस रामचरितमानस में ही ना एक लाइन में भी जोड़ देता हूँ सर। कि तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा लिखा है हम्म। कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर सुमर नर उतरई, सुमर नर उतरहि उतरई पारा। पारा। सबसे तो बड़ा प्रेमान, एडवांटेज। हाँ, तो ये तो सर हमें राधा राधा या जो भी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ले लो या कुछ भी ले लो, अब तो ये सुमरने ही पड़ेंगे ये, यस यस। तभी हमारी नैया पार होगी, चाहे अदरवाइज एज ए नहीं। ऑडिटर चाहे कैसे भी कर लो। तो सर ये 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। बताइए उमेश सर। कुमार वैस जी, हाँ, आप ले लो सर जरा। Whether 143(3)(g director disqualification also affected by non-maintaining of the audit trail? नहीं, डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन का इससे नहीं बनता। डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन उमेश भाई उसमें डिफाइंड है कि जिन कंपनियों ने लगातार सर्टेन पीरियड तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं किए, उसमें उन्होंने जो कंडीशन दी उसी से। ऑडिट ट्रेल से इसका कोई लिंक नहीं है सर। एनी एग्जेम्पशन फ्रॉम AS 15 फॉर कंपनी हैविंग लेस देन एम्प्लॉइज, एग्जेम्पशन केवल इतनी है सर कि अगर लेस देन 50 एम्प्लॉइज आपके हैं तो आप एस्टिमेटेड पर लाइबिलिटी का प्रोविजन कर सकते हैं, आपको एक्चुअली से हर साल वैल्यूएशन कराने की जरूरत नहीं है। कनक भाई पूछ रहे हैं, सर आर वी सपोज टू इशू सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट फॉर ट्रस्ट वेयर वी आर सपोज टू इशू फॉर्म 10BB? नहीं, अगेन वही बात है कि सेपरेट रिपोर्ट आप किस पर्पज से कनक जी इशू करना चाहते हैं। अगर 10B और क्लाइंट को, एसएससी को, ट्रस्ट को केवल 10BB की रिक्वायरमेंट है तो वो 10BB में ही कराएगा। और मेरे हिसाब से ये भी स्पेशल पर्पज रिपोर्ट है एंड वी हैव टू फॉलो इट सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। As usual, you are, sir, wonderful, and always take very, very in a good spirit the questions of our members, and you give your so much inputs and experience कि सर हम तो सुनते ही रहते हैं कि नहीं सर सर को जितना सुनो उतना ही अच्छा है। नहीं नहीं, ये फिर तो भी सर आप, यशपाल जी मेरे साथ है, तो आई वुड रिक्वेस्ट हिम कि काइंडली गिव ए वोट ऑफ थैंक्स विद कंक्लूडिंग रिमार्क्स। ओवर टू यशपाल भाई। Thank you, Rajesh. It is always a great pleasure listening, Gopalji. And believe me that as I saw in the morning the message, I immediately booked my diary. oh And sir, in fact, I was sincerely waiting for 5 o'clock, but somebody came. That's why I'm sorry I joined a little late. But sir, you have definitely gave us lot of inputs, and I believe that the profession has now a lot of challenges for the younger generation, definitely for older also, but
it is one advantage is with the older generation is that somehow they are managed to swim through in difficult times with their experience. Yes, yes. Which is not there in the case of fresh people, new business, new practitioners. So, but reading, writing, gaining knowledge is the only way through. There is no other way. So we are sincerely thankful to you, sir. It is fun listening to you, and we always wish that you be there on all the platforms. Sir. And I often discuss things with you, and as soon as some query comes, I always search your number and always try to get in touch with you. It's So my privilege, we sir. each one of us is very, very thankful to you, sir. Grateful, Thank you, sir. and have a nice day, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Once again, thank you, sir. Thank you.